Maharashtra Metro Rail Corporation Limited, a government-owned public sector undertaking incorporated with the great efforts of founder member, Government of Maharashtra and Government of India on 18th of February 2015. Our Managing Director, Honorable Dikshit Sir, has turned each word of vision and mission statement of Mahametro into reality. Let's listen carefully the vision and mission statement of Mahametro and understand the phenomenal success of Mahametro. Vision statement of Mahametro is to create an energy-efficient metro rail system of international standard, which will enhance the quality of life of the citizens of Nagpur and be instrumental in the overall development of the city by making it more vibrant and attractive and utilize the full potential of green energy in the form of solar, wind, etc. The mission statement of Mahametro is to provide a safe, reliable, efficient, affordable, commuter-friendly and environmentally sustainable rapid public transport system for the Nagpur metro region. And you experience that each and every word which is in vision and mission statement is true to its best. Invincible thirst for perfection, timely achievement of each target as set by MD Sir was the great driving force to the whole workforce of Mahametro and all the concerned government bodies and organizations working with Mahametro. Achieving one milestone after another has become custom to Mahametro. The 6 years has brought many laurels to Mahametro even during the chaotic pandemic year 2020. Few of the achievements include Orange Line and Aqua Line is operational within record time. 17 metro stations are operational, including the interchange. 20 kilometers metro line is operational. Metro is running in 15 minutes frequency, and the maximum speed achieved by metro while the transit is 80 kilometers per hour. Received prestigious Green Building Platinum rating for all the metro stations and the buildings. State-of-the-art, beautiful, hygienic and safe metro stations. Technologically advanced infrastructure. Various awards to Mahametro and its team and to our managing directors. We are ISO certified. Beyond metro work, various other work has successfully completed or under construction by Mahametro, such as Jaistam Chowk, improvement of junction along with improvement of CC Road from Manas Chowk to Jaistam Chowk, Futara Lake with viewing gallery. Invincible Dr. Brijesh Dikshit Sir has set the highest standard in the world of metro infrastructure in all the arenas. Quality, timeline, architecture, optimum resource utilization, costing, cost cutting, and use of best of technology. Various government companies and government bodies are taking help of Mahametro to prepare DPR and other export services. Thank you. Thank you. Metro is the need of the hour. It was essential for the public to come forward and use metro for their daily usage. Due to pandemic, public was reluctant to come out of their houses, use public transport, even after taking all the measures by Mahametro of hygiene and COVID. In order to increase the ridership, various public ridership campaigns were successfully implemented by Mahametro, comprising various programs such as opportunity was given to budding artists for musical programs to display their drawing, potteries, stall, riding of cycle, riding metro with the bicycle, celebration on wheel, and so on and so forth. While conducting this campaign, we got tremendous response from all the Nagpurians. We also came across many real-life heroes of Nagpur who has contributed to make this campaign successful. Today we are having with us special guest whose contribution to make this campaign successful and increase the metro ridership is commendable. Mahametro would like to recognize their contribution and would like to felicitate these real-life heroes of Nagpur. Internationally renowned musician Mr. Sachin Dhomre has conducted
musical program in metro station and a music campaign and help to create beautiful atmosphere for the riders and entertain them, attracting more and more citizens to ride the metro with a beautiful message. I request Mr. Sachin Thomle sir to kindly come forward. To honor his contribution, I request Shri Vijay Dixit sir to kindly felicitate Mr. Sachin Thomle. Sachin ji, kindly share your experience to this August gathering. नमस्कार। सबसे पहले तो मैं महामेट्रो का, दीक्षित सर का, कोकाटे सर का, गिरी सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा काम सौंपा है कि नॉर्मली मैं बोलता कम हूँ, बजाता ज़्यादा हूँ, मैं तबला बजाता हूँ, तो बोलने का मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं, फिर भी कुछ दिनों से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग जब 2010 से यूएस में प्रोग्राम कर रहे हैं सर हम लोग, तो वहाँ पे जाते थे और वहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन होते थे वहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे परफॉर्म करते थे। तो मुझे लगता था कि जब भी ऐसा इस टाइप का कुछ मौका मिले हमको, हमारे कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म हो। नॉर्मली स्टेशन पे ऐसे लोग गाते हैं जो मतलब जिनका कोई रिकॉग्निशन नहीं होता है, लेकिन यूएस जाके मुझे पता चला कि आर्टिस्ट वहाँ पर भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट स्टेशन पर परफॉर्म करते हैं। तो इसी संकल्पना को लेकर जब गिरी सर और शायद आपने कहा कि ऐसा म्यूजिक का कुछ ना कुछ करना चाहिए, और हमारे जितने भी आर्टिस्ट है, पेंडेमिक में बहुत ज्यादा हम लोगों को तकलीफ हुई पेंडेमिक में, तो पेंडेमिक से ये फ्लोर हमको इतना काम में आया है, मतलब बहुत वे, मतलब राइडरशिप के लिए भी काम में है कि काफी लोग आने लगे, एडवर्टाइजमेंट होने लगी, और हम परफॉर्म भी करने लगे एज अ आर्टिस्ट। तो मैं यही चाहूंगा कि जितने भी लोग अलग अलग क्षेत्र से इस नागपुर में हैं, वो लोग मेट्रो को जितना प्रमोट कर सके उतना जरूर करें आने के लिए। तो इस टाइप से सारी चीजें होती थी। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मुझे आपने एक बहुत बड़ा मौका दिया है। जरूर सर बोल रहे 2 लाख क्रॉस करेंगे, जरूर क्रॉस करेंगे सर हम लोग। और मैं बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा मेट्रो का। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Honorable MD Mahametro has conceptualized the Bapu Kuti at Airport Metro Station. In order to serve the society, MD sir had also conceptualized the idea of hangout place for senior citizens beside Bapu Kuti with the state-of-the-art library. Senior journalist and head of Vidarbha Seva Samiti, Shri Anand Nirban sir, has extended his help by taking guardianship of hangout place for senior citizens and popularizing the same. He has conducted various programs in metro station. Thus, his dedicated work towards hangout place and library helped Mahametro to reach to the respective audience. I request Shri Vijay Dixit sir, MD Mahametro, to kindly felicitate Shri Anand Nirban sir. I request Anand ji to briefly share his experience with us. आदरणीय दीक्षित जी और मेट्रो की पूरी टीम को आज के इस स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं इस साल सितंबर में पत्रकारिता में 50 वर्ष पूर्ण कर रहा हूँ। इन 50 वर्षों की जर्नी में कभी मेरा मन नहीं करा कि किसी सरकारी दफ्तर
या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में दो शब्द बोलूं। ये पहला अवसर है या मैं ये कहूं कि मुझे शब्द कम पड़ रहे हैं। वैसे दीक्षित जी अभी सरोकार की पत्रकारिता लगभग मृत पाए है। आप कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे को आके बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कुछ अच्छा हम कर रहे हैं, बताइए जनता को। आपके यहाँ थोड़ी सी गलती हुई कि हम पूरे कैमरामैन के साथ दौड़ पड़ते हैं कि आज मेट्रो में ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एक नागरिक के रूप में भी कह रहा हूँ, एक पत्रकार के रूप में भी कह रहा हूँ, दीक्षित जी आप जितने ऊंचे पर रहे हैं, आपका सोच उससे भी ऊंचा हो रहा है। प्रशंसा करना हमारे किताब में है नहीं, हम वैसे भी करेले उसको कितना भी दो पहुंच के ये निकालो तो भी थोड़ा कड़वापन उसमें रहता ही है। तो ये हमारे पेशे की आवश्यकता है। पर हम जो कुछ कहते हैं वो हमारे 1 लाख, 1.25 लाख, 5 लाख जो भी जिसका होगा, उनकी हमारी आंखों से वो आपको देखते हैं। तो वैसा करते वक्त हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सही बातें उन तक पहुंचाएं। आपने इतने अल्प समय में 17 स्टेशन ऑपरेटिव कर दिए। मैं एक दो बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। फॉरेन में मैं एक जगह स्टेशन पे खड़ा था, मैं सोचता था कि क्या कभी ऐसा दिन मेरे देश में मेरे कहीं देखने को मुझे मिलेगा। साफ सुथरा रेलवे स्टेशन, सारी व्यवस्था बराबर, समय की पाबंदी। और यहाँ आने के बाद भी मैं अपने ये जो वैरायटी चौक है वहां पर खड़े होकर जब मैंने वो वहां पर जो मॉल बना तो थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि अब शहर बदल रहा है। हाल ही में मैं श्री गडकरी जी के निवास पे गया था एक किसी मेहमान को लेके। उन्होंने अपने टेरेस पे आके बताया कि देखो आनंद, नीचे की लाइन ऊपर की लाइन कितना सुंदर दिखता है। तो जो व्यक्ति, उनको अधिकार पहुंचता है, उन्होंने काम किया है और वो अगर बता रहे हैं तो हमारे शहर का जो विकास है उसका दर्पण हमको बता रहे हैं। तो कई लोग यहाँ केंद्रीय मंत्री बने, कई लोगों ने बड़े बड़े ओहदे संभाले, पर काम के मामले में जो रेखा खींची है गडकरी जी ने देश में और हमारे प्रदेश में दीक्षित जी ने खींची है। और मेरे पेशे में हम लोग ज्यादातर बुराई ढूंढते हैं, पर इन्होंने कोई ऐसी मार्जिन नहीं छोड़ी कि थोड़ा बहुत बदमाशी हम वहां भी कर लें। वास्तव में साफ सफाई, डिसिप्लिन और सारी चीजें, वो गांधी कुटी में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर आए थे, बोले यार ये ऐसी चीजें तो हमारे यहाँ होनी चाहिए। बोला तुम्हारे यहाँ वर्धा में कौन देखने आएगा, यहाँ तो देश विदेश सब जो लोग आते हैं देखते हैं और एक मैसेज जाता है। डिक्टो बिल्कुल वैसी की वैसी गांधी कुटी जो सेवाग्राम में है वो आपको एयरपोर्ट के मेट्रो स्टेशन में देखने को मिलेगी। वहाँ एक अच्छी लाइब्रेरी, और उन्होंने हमें इस लायक समझा। दीक्षित साहब, मैं यहाँ अगर वैसा मैंने अभी आपको कहा कि ये शॉल हमने आपको पहनानी चाहिए जो आप हमको पहना रहे हैं, और वो इसलिए नहीं कि आप हमें अच्छे लगते हैं, आप बड़े दबंग और अच्छे। और इतने सब काम के दौरान जब हम लोग कभी मिलते हैं, कभी उनके चेहरे पे भ्रुकुटी ये नहीं रहती कोई किसी। अब आप लोग ज्यादा जानते होंगे, पर जितना भी हमने जाना है, आपका एकमात्र ध्येय रहता है कार्य को अंजाम देना, समय पे काम करना। और मुझे पक्का विश्वास है कि इस शहर को अगर अंतर्राष्ट्रीय पहचान कभी अच्छे से मिल पाएगी तो उसका पहला कारण रहेगा ये मेट्रो। Individuals look for different places to celebrate different events. Celebration on Wheel is a unique concept of Mahametro, conceptualized by Honorable MD of Mahametro, considering human basic instinct and love for new things and new facilities. Popularized the same, various schemes were floated. Shri Jugal Kishore Borkar, a ZP teacher, has conducted a beautiful and unique program of Haldi Kumkum in Metro, booking under the scheme of Celebration of Wheel. 150 ZP lady teachers participated in the event. The program was a huge success and reached to the hearts of female travelers. Journey by Metro is the safest, coolest and cheapest mode of transportation was the message to the large public. It has created new wave and enthusiasm in female traveler and helped to breach the barrier. The beautiful and simple message through Mr. Borkar's act cannot remain unnoticed by the duty-bound staff of Mahametro and especially MD Mahametro. For this out-of-the-box thinking and beautiful efforts,
we would like to felicitate Mr. Jugal Kishore Borkar. Sir, kindly come forward. I request Shri Vijay Dikshit sir, MD Maha Metro, to felicitate Mr. Jugal Kishore Borkar. I request Borkar ji to kindly say a few words and share his experience. नमस्कार गेस्ट आणि आज या 6व्या वर्धापन दिनाच्या सर्वांना भेटूच्या शुभेच्छा. मला काय बोलवलं गेलं हे तुम्हाला मॅडमनी सांगितलं, त्याच्यापेक्षा जास्त एक्सप्लेन करून सांगतो. मी जिल्हा परिषदला शिक्षक आहे आणि एका संघटनेचा जिल्हा सचिव पण आहे. मेट्रो जेव्हापासून सुरू झाली तेव्हा माझी शाळा त्या लोकमान्य नगरच्या जवळच होती. म्हणजे यांची अर्थ टेस्टिंग झाली तेव्हापासून मेट्रोचा आणि माझा संबंध ऍक्सिडेंटमुळे आला. यांची जे अर्थ टेस्टिंगची एक छोटी पाईपलाईन टाकत होते तेव्हाच माझा ऍक्सिडेंट झाला होता आणि मला मेट्रो सोबत तेव्हाच पहिल्या धडकेतच प्रेम झालं. गोष्ट अशी झाली, 3 सप्टेंबर 2018 माझ्या गावचीच कोकाटे सर असल्यामुळे त्यांना मी विनंती केली की तुम्ही सगळ्या सेलिब्रिटीजना जॉय राईड देता. आम्ही शिक्षक दिन आहे आमचा 5 तारखेला, तर त्या पूर्वसंध्येवर आम्हाला मिळेल काय. आदरणीय गानार साहेब आमदार, शिक्षक आमदार त्यांनी विनंती केली आणि आम्ही एकमेव असं घटक आहोत की सेलिब्रिटी व्यतिरिक्त आम्हाला जॉय राईड मिळाला त्या काळात 2018ला. त्यानंतर आम्ही दरवर्षी आमचा जो हॅपी टीचर्स क्लब आहे त्याचे जे आमचे 300-350 मेंबर्स आहेत, त्याच्यात 200 महिला आहेत, त्याच्याद्वारे आम्ही दरवर्षी हळदी कुंकूचा कार्यक्रम करतो. मागच्या महिन्यामध्ये एक ऍड आली FM वरती आणि त्याच्यामध्ये मी असं ऐकलं की 3050 रुपये भरून तुम्ही सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स करू शकता. याबाबत मी कोकाटे सरांना संपर्क केला. एक अभिजित सर म्हणून आहे सुभाषनगर स्टेशनला, त्यांच्याशी मी भेटलो आणि त्यांनी मला सांगितलं की हो सर सेलिब्रेशन करता येते, तुम्ही वाढदिवस करा, काही करा, फक्त त्याच्यामध्ये जेवण खाणं पिणं किंवा फायरचे आयटम्स म्हणजे बर्थडेला कॅन्डल वगैरे लावणं हे मेट्रोमध्ये अलाव नाही. सर्व 150 शिक्षिका तयार झाल्या आणि 21 तारखेला एक बातमी आली की मेट्रोमध्ये धांगड धिंगा. आम्ही सगळे अवाक झालो. आमची 23ची राईड होती, काय करावं कळत नव्हतं. 22ला आम्ही संपर्क केला. आमच्या लोकांनी सांगितलं सर आपलं 1 तासात होत नाही. 1 तासामध्ये आपल्या राईडमध्ये हळदी कुंकू, आम्ही 2-4 इव्हेंट केले, उखाणे स्पर्धा, वेशभूषा, अशा स्पर्धा आपल्या 1 तासात होणार नाही. लोकांनी पुन्हा सांगितलं की आपण 2 तासाचं करू आणि मेट्रोकडून निरोप आला की तुमचा कार्यक्रम रद्द. का बरं सर, तुम्ही आम्हाला जेव्हा तुमची बुकिंग झाली आमची तेव्हा तुम्ही सांगितलं की या गोष्टी सोडून बाकी सगळं करता येईल. नाही सर, मॅटर झाला, पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट झाली, कसं करायचं. आमच्या महिला पटापट ग्रुपवर मेसेज यायला लागले, सर आम्ही येणार नाही, आम्ही येणार नाही, आम्ही येणार नाही. मग मी सरांना कॉन्टॅक्ट केला की आम्हाला तुम्ही एक्झॅक्ट काय करणार. आम्ही हळदी कुंकू करणार, एक बीटी स्पीकर असणार, तो स्पीकरवरती उखाणे घेणार आणि थोडासा कॅटवॉक, त्याला आपण कॅटवॉक नाही म्हणता येईल, वेशभूषा, महिला वेशभूषा करून येतील, तेवढा आम्हाला अलाव करा. नाही, नो अलाव, तुम्ही पैसे परत घेऊन जा. म्हटलं सर मेट्रो सोबत आमचा संबंध खूप जुना आहे. मग 2-3 लोकांनी मध्यस्थी केली आणि आम्हाला अलाव केलं. आम्ही 1 तास नाही, आम्ही 2 तासाची 150 महिलांची राईड केली आणि सर चेंज केलं. म्हणजे ऍक्वालाईन बुकिंग होती, 1 तासाची ती मिळाली, पुन्हा आम्ही रिपीट करायला गेलो, मिळाली नाही तर आम्ही ऑरेंज लाईन केली. आमच्या 150 भगिनी जेव्हा मेट्रोमध्ये घुसल्या, काळा ड्रेस म्हणजे तो त्या सणाचा ड्रेस असतो, काळा ड्रेस घालून घुसल्या, पूर्ण स्टेशन अवाक झालं. आणि जो 2 दिवसापूर्वी धांगड धिंगा झाला होता, पत्रकारांनी सर्वांची इंटरव्ह्यू घेतली आणि तो मेट्रोला लागलेला डाग पुसण्याचं काम आम्ही केलं आणि म्हणून मला इथे येण्याची संधी मिळाली. आज आम्ही 4500 शिक्षक आहोत, तुमच्या पाठीशी राहू. मेट्रोच्या कामामध्ये जेव्हा केव्हा आमची मदत लागेल तेव्हा आम्ही आता आश्वासन देतो, हजारोच्या संख्येने तुमच्या Place where the poor has cars. It's where the rich use public transportation. And such examples are setting up in Nagpur. The average daily travelers of Nagpur Metro has reached to more than 20,000 and still the number is growing even during this pandemic. The number of highest passenger per day was on 26th of January counting to 56,000. Out of this, 10% of the passengers use Metro card. The regular commuters by Metro is increasing and also the Mahacard users. One of these regular commuter using Mahacard is Mr. Nikhil Wankhede.
who is civil engineer working in Kaibi Construction, Khapri, Mihan. For him, the travel was really difficult because he was traveling from Vasudev Nagar to Mihan, and every day it was a difficult journey for him. With the metro, the ride has become very smooth, and today metro is boon for him. He has used Mahacard for the highest number of times amongst all the Mahacard users. I request Mr. Nikhil Wankere to kindly come forward. I request Shri Brijesh Dikshit, MD Mahametro, to felicitate Mr. Wankere. Well done. I request Nikhil ji to kindly share his experience with us. नमस्कार, माझं नाव निखिल वानखेडे. मी एक 8 वर्षापासून मिहान मध्ये काम करतोय. सध्या कायबी कन्स्ट्रक्शन मध्ये मिहान या महिंद्रा या प्रोजेक्टला काम करतोय. मी आधी ज्या कंपनीत होतो त्या कंपनीत मला गाडीची सुविधा होती. मला बस पिकअप करायची आणि सोडून द्यायची, त्यामुळे प्रॉब्लेम नव्हता. मध्ये मी कंपनी चेंज केली. त्यात असं झालं की गाडीची सोय नव्हती. मला माझ्या 2 व्हीलरने ट्रॅव्हल करावं लागायचं. त्या 2 व्हीलरने ट्रॅव्हल करायचं म्हटलं तर सध्या तसं तर ट्रॅफिक पुष्कळ आहे आणि इतकं लांब मी कोराडीवरून ट्रॅव्हल करायचं होतं. इतकं लांब केल्यामुळे मला मणक्याचा त्रास व्हायला लागला. तर डॉक्टरांनी मला सजेस्ट केलं की तुम्ही तितकं लांब ट्रॅव्हल करू नका, आणि बाकी ट्रान्सपोर्टनी करायचं म्हटलं की वेळ जास्त वाया जातो. तर मी माझ्या वेळेत पोहोचू नव्हतो शकत कंपनीत. त्याच्यामुळे मग आता काय करावं काय नाही फार प्रश्न पडलेला मला. डॉक्टर म्हणाले जर का तुम्ही कंटिन्यू बाईकने ट्रॅव्हल केलं तुम्हाला हा त्रास वाढेल आणि हा फार डेंजरस होईल तुमच्यासाठी. आता काळजीपोटी आई वडिलांनी मला पर्याय दिला की तू जॉब सोडून द्या, काही पर्याय नाहीये तुझ्याजवळ, दुसरा काहीतरी जॉब शोध. मी विचारात पडलो, आता जॉब शोधणे दुसरं करणे फार कठीण काम आहे सध्या. मग एक दिवस माझ्या मिसेसने मला एक आयडिया सुचवली की तुम्ही मेट्रो सुरू झालीत आणि का प्रवास करत नाही, ते फार सोयीस्कर असते. आणि मग मी त्यावेळी जेव्हा इन्क्वायरी केली तेव्हा थोडासा टायमिंग नव्हता, म्हणजे थोडा वेळ हळूहळू सुटायची ट्रेन. मग तरी मी केलं आणि लगेच काही दिवसातच त्याचा टायमिंग ऍडजस्ट झाला. आता 15-15 मिनिटाला मेट्रो सुटते. तर मी माझ्या वेळेत आता पोहोचायला लागलो. त्याच्यामुळे आधी मी जे ट्रॅव्हल करायचो त्यात माझा टाइमही खराब व्हायचा आणि माझी तब्येती बिघडायची. आता मेट्रोनी ट्रॅव्हल करतो त्याच्यामुळे मला तब्येतीलाही आराम झाला आणि सुखरूप घरी पोहोचतो. निश्चिंत असतात सगळे, निश्चिंत. माझी मिसेस आई वडील सगळे हॅपी आहेत आणि मी एक फार छान प्रकारे. आणि जसं ट्रॅव्हल गाडीनी करून जात होतो तर मी थकून जायचो ट्रॅफिकमुळे आणि बाकी सगळ्या गोष्टीमुळे. आता जो वेळ माझा ट्रॅव्हलिंग आणि यात जायचा तो मी एन्जॉय करतो आता मेट्रोमध्ये फार चांगल्या प्रकारे. आणि मी सगळ्या मित्रांना आता सांगतो की मेट्रो फार छान सोय आहे. आणि मी कधी असा विचार नव्हता केला की नागपुरात इतकी छान सेवा कधी भेटू शकते आम्हाला. मग मी आता सगळ्यांना सांगतोय की मेट्रो फार छान आहे आणि त्यांनी प्रवास करावा. हा माझा फार छान अनुभव आहे. बस एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपतो. We get thousands of messages, suggestion, appreciation, and not only that, we also get criticisms every day. Today we are having with us social media activist Mr. Sudhir Dabir. Dabir sir regularly posts his suggestions and has become part of Metro family with his appreciation messages and being constant supporter. His positive approach and unconditional support to Mahametro is commendable. Mahametro would like to honor his efforts and would like to felicitate him on this auspicious day. I request Shri Brijesh Dikshit sir to kindly felicitate Mr. Dabir sir. आपने कमेंट किए मेरे को कंटिन्यूअसली. हाँ बहुत धन्यवाद. I request सर्वप्रथम टीम नागपूर मेट्रो अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्रिजेशजी दीक्षित, मी सगळ्यांना तुमचे अभिनंदन करतो की जे नितीन गडकरीजी आणि देवेंद्र फडणवीसजी स्वप्न पाहिलं होतं ते स्वप्न साकार करण्याचं तुम्ही पूर्ण टीम नागपूर मेट्रोनी हे केलेलं आहे. आणि आम्हाला त्याचं खूप सुरुवातीपासून एक उत्सुकता होती. जसं की त्याचं हे झालं भूमिपूजन झालं, आता पुढे काय होणार.
मी तेव्हा मुंबईला होतो, तर येताना ते मेट्रोचं तुमचं स्टॉक डेपोचं तयारी चालली होती, ते दिसायचं. चला बा, ही एक स्टेज आहे. त्यानंतर तुमचं ते हे सुरू झालं, खापरी ब्रिज, आणि हळूहळू एक एक काम होत गेलं. एक एक माइलस्टोन तुम्ही अचीव्ह करत होते, तर आम्हाला असं वाटत की आमचंच काहीतरी योगदान आहे. आम्हालाही खूप आनंद व्हायचा. आणि आता पाहता पाहता सगळी स्टेशन्स निर्माण झाली आहेत, लोक त्याचा उपयोग करतायत. तर ही एक फार नागपुरात आवश्यकता होती. लाईफलाईन आता ही निश्चितच नागपूरची बनणार आहे, याच्याबद्दल काही म्हणजे हेच नाही, शंकाच नाही. तर पुन्हा एकदा मी तुम्हा सगळ्यांना अभिनंदन करतो, धन्यवाद देतो. धन्यवाद. There are 3 interactive sessions which will be simultaneously conducted in 3 different conference halls from 11:30 to 12:15 p.m. Post interactive session, all are kindly requested to assemble at auditorium by 12:20 for concluding session. The session would start by 12:30 and lunch shall be followed by the concluding session at 1 p.m. I will quickly walk you through what are the agenda for all these 3 sessions. The first session will be on green journey for the citizen of Nagpur. Pure air, less traffic congestion, safe journey. What more? A person wants to have a safe and healthy journey. Metro has provided the safest and greenest solution to the Nagpur curve. To discuss the same, we are having panel discussion on the topic green journey for the citizen of Nagpur. The second session will be on Mahacard, an app, the way to cashless journey. In this digital economy, use of Mahacard and app is boon to the general public. The multi-utility Mahacard, its features and the journey towards the cashless journey shall be discussed with the eminent speakers and panelists. Third session will be on safe journey of women. One of the most user-friendly, economical, state-of-the-art, safe mode of transport is available to the females of Nagpur. Based on the great feedback and positive response from the females in Nagpur, it was conveyed that the metro facility had boosted their confidence of many girls and ladies, and this will help them to take their first step towards their independent journey and towards their independence. The brainstorming topic shall be discussed with the eminent panelists, where who is present in the session. Now with this, I request, for which we are eagerly waiting for, that hearing to our beloved MD, Mahametro, and received his blessings and Foundation Day message. I request MD Mahametro, Shri Vijay Dixit, to kindly address the August gathering. नमस्कार. महामेट्रो के इस 6वें फाउंडेशन डे के अवसर पर उपस्थित समस्त महानुभाव, महामेट्रो के मेरे समस्त सहयोगी भाई और बहनों, सर्वप्रथम इस 6th फाउंडेशन डे की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये सेशन हम लोगों ने अपने यूजर्स से मिलने के लिए रखा था। आप जैसा जानते हैं कि महामेट्रो एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन रहा है। अब तक हम लोगों का काम उसको बनाने का था अब तक, और अब उसके बनने के बाद हम लोगों का रोल थोड़ा सा बदल रहा है। बनाने के साथ साथ अब हम उसको चला भी रहे, और जिनके लिए चला रहे हैं उनको ये कैसा लग रहा है, क्योंकि खाना बनाने वाला जब तक खाने वाले से पूछे नहीं वो बना नहीं सकता अच्छा। पूरा उद्देश्य ये था कि आप लोग जो उपयोग कर रहे हैं उनको कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग्स है,
जिस तरह की डिफरेंट एस्पेक्ट्स बनाने के होते हैं, ऐसे ही मेट्रो को चलाने में भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ट्रेन इटसेल्फ, उसके अंदर का सब सेटअप, उसकी पंक्चुअलिटी, क्वालिटी ऑफ राइड, स्टेशन पे आप जाते हैं तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था, वहां की साफ सफाई, हमारे स्टाफ का बिहेवियर, ओवरऑल आप लोगों को जो फीलिंग आती है। आप बता रहे थे, बाहर गए, आप बता रहे थे, तो ये जो महसूस होता है सेवा का, जो ये सारा भाव, तो अभी हम लोगों के सेशन होंगे, उसमें अलग अलग पहलुओं पे हम लोग बात करने वाले हैं, सुनने वाले हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी हमारे जैसा बात हुई और अभी सेक्शन खोलेंगे, 40 किलोमीटर से 25 किलोमीटर अभी लाइन चल रही है। इस साल के अंत तक बाकी जो 15 किलोमीटर है वहां भी चलेगी। और वो 15 किलोमीटर बहुत डेंस है एक्चुअली, जो उत्तर नागपुर और पूर्व नागपुर का एरिया जहां पर अभी हम बना रहे हैं, वो सबसे ज्यादा डेंस एरियाज हैं। और उन एरियाज को हम कनेक्ट करेंगे वर्किंग एरियाज। नागपुर का जो मेट्रो का जो नेटवर्क है, उसका डिजाइन कुछ इस तरह से है कि ये जो उत्तर और पूर्व के जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वो सीबीडी जैसे अपन सीताबर्डी बोलते हैं, बीच में है वो। और उसके बाद हिंगना का इंडस्ट्रियल एरिया, मेहान का इंडस्ट्रियल और सर्विस एरिया, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रेलवे स्टेशन है, मेन रेलवे स्टेशन नागपुर का और अजनी का, एयरपोर्ट है। तो रेजिडेंशियल एरियाज को इन सब एरियाज से कनेक्ट करना, हॉस्पिटल्स हैं, तो बहुत अच्छा डिजाइन हुआ है। और अब जो कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उसका उपयोग करें। मेरा आह्वान है सब लोगों से, अपील है कि अब जब बनी है तो मैक्सिमम पॉसिबल संख्या में इसका उपयोग होना चाहिए, तभी उसका उद्देश्य पूरा होगा। मेट्रो बनाना अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं हो सकता, चलना बेसिकली उद्देश्य है। और ये रोज ये जो हमारा जो ये डेली का चैलेंज है, दिस वी हैव टू विन दिस एवरी डे। और अब जैसे मान लो स्कूल अभी चालू हुए थे तो बड़ा अच्छा रिस्पांस स्कूल से आया। स्कूल के बहुत सारे बच्चे हम लोग देखते हैं, मॉनिटरिंग हो रही है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सारे स्टेशनों में, वहां से पिक्चर हमारे सेंट्रल कंट्रोल में आते हैं। तो आप लोग जब आज यहाँ पर आए हैं तो मैं ये भी अपील करूंगा, आप लोग हमारा सेंट्रल कंट्रोल जरूर, माथुर और कुकाटी, इनको एक सब लोगों की एक विजिट कराइएगा, वो अच्छा रहेगा। सब लोग जितने लोग आए हैं, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे सब मॉनिटरिंग हो रही है, जानकारी कैसे आ रही है। तो वो एक जानकारी लोगों के बीच में जानी चाहिए। हम लोगों ने जो पैनिक बटन लगाए हैं, स्टेशनों पे पैनिक बटन लगे हैं, पता नहीं बहुत सारी चीजें हो सकता है मालूम नहीं हो लोगों को। ये भी एक उद्देश्य है बताने का सबको कि किस तरह से इन चीजों को किया गया है, कैसे उनका उपयोग होगा, किस तरह से उससे फायदा होगा। स्टेशनों पे पैनिक बटन लगे हुए हैं, ट्रेन के अंदर पैनिक बटन लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ऑन बोर्ड से लोग बात कर सकते हैं हमसे, चलते चलते बात हो जाएगी। तो जिसकी जो आवश्यकता हो उस हिसाब से हम लोग की उपलब्धता है, मॉनिटरिंग है, और जो कि सब लोग सेफली चले, सब लोग अच्छे से चलें, इस बात की पूरी व्यवस्था की गई है। मुझे पता नहीं सब लोगों को कितनी जानकारी है, तो ये पूरी जानकारी हम लोग देते रहे हैं, नॉट दैट, बट ये कई बार बताने के बाद भी अगर लोगों के समझ में आ जाए पूरी बात, तो भी हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं कि अच्छा सब समझ में आ गया। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कई लोग ध्यान देते हैं, कभी नहीं देते, कभी मिस करते हैं, कुछ होता है। तो ये एक लगातार हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जितना भी हम कर रहे हैं वो जब लोगों तक पहुंचे, उसका उपयोग पूरा हो, अच्छे से हो, और उसका लाभ जो है ना सिर्फ हमारे इंडिविजुअल लोगों तक पहुंचे, बट पूरी सोसाइटी एज ए होल, सिटी एज ए होल तक पहुंचे। वो देश के विकास का यही एक जरिया है, जिससे कि नागपुर का विकास होगा तो महाराष्ट्र का होगा, और महाराष्ट्र का होगा तो देश का होगा।
तो यही एक कोशिश थी और मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की कि आप सब लोग आज इस कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित हुए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने महा मेट्रो के समस्त सहयोगियों को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। जय हिंद। Thank you, sir. Thank you, sir, for your kind words and blessings. With the second phase and also the third phase in picture, growth of Nagpur and surrounding areas is unprecedented. Mahametro has worked in record time with least cost under the able guidance of Dr. Brijesh Dikshit, sir. The new agenda set by him would be put up in action plan and mission shall be accomplished within targeted timelines is the promise of all Mahametro workforce who are working relentlessly for the progress of company and the nation as a whole. The update made by MD sir was be well taken by the Nagpurkars, I would say, and definitely we will see more and more number of passengers in metro and use the facilities which is provided by Mahametro and make it successful. जेव्हा पुण्याला गेलो होतो आत्तामध्ये लॉकडाऊन ओपन झाल्यानंतर आणि पुण्याला गेल्यानंतर एकदा पुण्याच्या गर्दीच्या रस्त्यांवरून फिरत असताना आता पुण्यात पण मेट्रोचं काम सुरू झालंय आणि इथे आम्हाला पुण्यामध्ये माझी मेट्रो नागपूर महामेट्रो नेहमी पुणेकर आपली प्रत्येक गोष्ट पुण्यामध्ये नागपूर मेट्रो थोड़ा सा बताइएगा कि सेफ मेट्रो राइट तो इसका मतलब आपको क्या आप क्या इसका पर्सपेक्टिव देते हैं, कैसा आपको लगता है कि कैसी सेफ होनी चाहिए हमारी मेट्रो या मेट्रो क्या सेफ राइड क्या वुमेन के लिए कैसे सेफ राइड होनी चाहिए? वैसे तो जो आप लोगों ने यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी रखी है उस हिसाब से तो पहले ही सेफ है और उसके अंदर जब अंदर बैठते हैं तो जो भी उसमें डिस्टेंसिंग है और उसमें अंदर तो पूरे कैमरे लगे हुए हैं, इस वजह से वो ऑलरेडी पहले ही सेफ है। और सबसे बेस्ट है कि जब हम लोग अंबाझरी तालाब की तरफ से जाते हैं वो सबसे सुंदर, उसके जैसा कहीं भी नहीं है। तो मैम हम अपनी बच्चियों के लिए अपनी बहनों के लिए हम लोगों के लिए जैसा चाहते हैं कि हमारी मेट्रो ऐसी होनी चाहिए, ये सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, हमारी राइड सेफ होनी चाहिए, तो इसमें आप कैसा समझती हैं, क्या समझती हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए या क्या है, व्हाट यू अप्रिशिएट कि इसमें क्या सेफ राइड है यहाँ पे? देखिए अभी जब जितनी मैंने राइड की है उतनी तो सेफ है। अभी जैसे अभी लॉकडाउन खुलेगा और जैसे बच्चे उसमें ट्रैवल करेंगे और स्पेशली स्कूल कॉलेजेस की, उसके बाद में जैसे समय बीतेगा वैसे क्या क्या होना चाहिए ये भी सामने आएगा। लेकिन जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं होंगे उस समय तक तो अपन बोल नहीं सकते कि हमको ये भी चाहिए इसमें फैसिलिटी या वो भी चाहिए। लेकिन जब तक कॉलेज की जब तक लड़कियां ट्रैवल करके आएंगी नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं बता सकते। मैं कुछ जानना चाहती हूँ इसके बारे में, जैसे आप सेफ बोल रहे हो और कैमरास लगे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कोई ऐप या ऐसा कोई कुछ है जहाँ पे हम लोग जैसे ऑन द राइड अगर कुछ घटना घटती है या किसी को हेल्प की जरूरत है तो विद इन मिनट्स उसके पास वो पहुँच सकती है, ऐसा कुछ ऐप या ऐसा कुछ हमने लॉन्च किया है? So इसी बात पे बिकॉज आई बिलोंग टू दैट फील्ड, आई एम जियो स्पेशल साइंटिस्ट। जियो स्पेशल साइंटिस्ट मीन्स हम लोग सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट करते हैं, देन वी प्लॉटेड एंड आपको पता है जीपीएस और एक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो उस ऐप से लेते हैं। मीन्स इफ यू आर कॉलिंग फ्रॉम योर ऐप जो अभी आपके मेट्रो के ऐप में नहीं है, सो एक वो एक टैब आपकी होनी चाहिए जो मेट्रो का जो आपका ऐप है तो उसमें वो एक होना चाहिए दैट इज आपके यहाँ पे इमरजेंसी बटन है बट समहाउ इफ यू कैन जस्ट वहाँ पे ना जैसे ऐसे करके पुश करेंगे ना पेन ऐसा कुछ है पेन वहाँ पे जहाँ पे कोच में जाएंगे ना तो जहाँ पे आप एंटर करती हैं मुझे गेट वहीं पे ऐसे करके पुश करिए उसको एंड वहाँ पे आप तुरंत टीओ से बात कर सकती हैं और यहाँ से मॉनिटर हो रहा है सब तो हर वक्त यहाँ पे एक पूरी टीम बैठी है ऑफिस में और वो सारे स्टेशन से भी जुड़ी हुई है तो विद इन मिनट्स फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स आपके पास जो भी आपकी सुविधा मान लीजिए आपको किसी की मेडिकल कंडीशन खराब हो रही है तो तुरंत उसके पास वहाँ पे नेक्स्ट स्टेशन पे जब तक वो ट्रेन पहुँचेगी वहाँ तक व्हील चेयर या जो भी चीजें सभी विद इन मिनट्स पहुँच जाएगी। सो हमने कोशिश बताइए कि क्या यही सेम चीज मैम अगर आप आपके ऐप में इसको एक टेक्नोलॉजी बोलते हैं कॉल्ड एज अ कैड कंप्यूटराइज डिजाइन डिस्पैच सिस्टम जो आता है जो जीपीएस और जीआईएस के साथ होता है कि आपको पर्टिकुलरली वहाँ पे आपको
नहीं पाएंगे, मे बी शी विल नॉट एबल टू गो अप टू दैट डोर एंड, तो अगर आपके ऐप में वो एक छोटा सा फैसिलिटी अगर दे दिया जाए तो एक ये हो जाएगा। तो या आई नो मैम, बट हाँ लिख लो ना सजेशन, क्योंकि ये हेल्पलाइन नंबर इज जनरल एवरीवेयर, बट व्हाट आई सॉ एक टच पे कुछ actually what these facilities I saw in Beijing, in their app they have this kind of thing. म्हणजे मला जर कुठे जाताना त्रास झाला, so it is easy for me to just पोहोचू शकत नाही. already this system is implemented by our police department कि आप कहीं बाहर जाते हो, आप वहाँ से वो ऐप दिखाते हो, तो our GPS and our GIS system will spot it कि वो कहाँ पे है और कहाँ पे उसको हेल्प देना है. तो सेम थिंग आजकाल आणि लेडीजच्या दृष्टीने एक पॉइंट मला असा सजेस्ट करा असं वाटतो की सॅनिटरी पॅड्स आपण हे डिजिटल हे की इमर्जन्सी मध्ये सगळ्या मेट्रो स्टेशनवर एक वेंडिंग आहे. आणि या सुरक्षिततेमध्ये माझी एक एवढीच विनंती आहे, हा आम्ही तुम्हाला सांगू तुम्ही करणार आहे, पण ज्या प्रवास करतात, ज्या स्त्रिया स्वतः प्रवास करतात किंवा मुली प्रवास करतात, त्यांनी स्वतःच्या काळजीसाठी आपल्याला काय करता येईल हा मुद्दा आहे. म्हणजे पहिल्यांदा स्वतःला मला म्हणजे सुरक्षा हवी आहे हे तुम्ही बोलायला पाहिजे. तुम्ही स्वतःची सुरक्षा तुमच्याच हातात असायला हवी. यासाठी कसं करता येईल मॅम की बाकी मुली करतील नाही करतील, पण जर मेट्रोनी असे अवेअरनेस प्रोग्राम सेल्फ डिफेन्स, सेक्शुअल हॅरासमेंट हा इज अ बिग इश्यू इन ट्रॅव्हलिंग, व्हेन पर्टिक्युलरली व्हेन यंग गर्ल्स ट्रॅव्हल, की सेक्शुअल हॅरासमेंट त्यांना होते, तर हा अवेअरनेस प्रोग्राम जर मेट्रोनी घेतले की छोटे रात्रीच्या वेळी ट्रॅव्हल करावं लागतं, सांगितलं ना तुम्ही की हे प्रोग्राम्स घ्या, तर मी हे प्रोग्राम्स घेतच राहते. तर तुम्ही आपण सगळे मिळून हा घेऊ, कारण आपण तेच काम एकत्रितपणे एखादा कार्यक्रम किंवा मंथली प्रत्येकाने आपलं काहीतरी सपोर्ट नाही. त्याच्यामध्ये कॉलेजेसचे किंवा स्टुडंट्स खूप जास्ती असणार आहे, तर तिथल्या ज्या मुली आहेत त्यांच्यासाठी त्यांच्या स्कूलमध्ये जाऊन कॉलेजेसमध्ये जाऊन जर तुम्ही प्रोग्राम थोडे किंवा ऍडव्हर्टाइजमेंट जर दिली तर ती जास्ती वाढेल आहे अजून. आणि मेट्रो का यूज PCS ट्रांसपोर्टेशन देता है, बट HCL में ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इंडिविजुअली ट्रैवल करते हैं. इवन फीमेल्स मेल सब उनके 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है, उसी से ये जो हो जाएगा PCS का 150% PCS देता है. इस वजह से वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन इवन स्टूडेंट्स के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं हम लोग पर्सनल लाने के लिए. तो दे विल बी सोनली डिपेंड ऑन मेट्रो टू यूज फ्रॉम खापरी टू सिटी में. अगर वो 2 QR कोड जो कि फिजिकली QR कोड जनरेट कर रहे हैं हम विंडो से, टिकट ऑफिस मशीन से, और एक मोबाइल टिकट जो हमारा ऐप है नागपुर मेट्रो का मोबाइल ऐप, उसके थ्रू आप बुक कर सकते हैं. ये पेपर QR, मोबाइल QR, कॉन्टेक्टलेस स्मार्ट कार्ड, महाकार्ड भी कॉल इट. ये पेपर QR टिकट राइट साइड में आपको उसका एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, और उसमें मतलब 3 तरह की टिकट्स हैं. जैसे सिंगल जर्नी टिकट है आपकी, रिटर्न जर्नी टिकट भी बुक कर सकते हैं आप, और ग्रुप टिकट मतलब जब 5 लोग या उससे ज्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो एक साथ भी उनकी आप टिकट ले सकते हैं, ताकि अलग अलग हर आदमी के लिए आपको टिकट ना करना पड़े. मिनिमम 5 होना चाहिए. मिनिमम 5 ग्रुप टिकट के लिए मिनिमम 5 लोग होना चाहिए. सबसे पहले सभी पैनलिस्ट्स को, मेट्रो ऑफिशियल्स को और सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार. मैं एक एकेडमिशियन हूँ, एक रिसर्चर हूँ, और गुप्ता जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ इतने विस्तार से मेरी इंट्रोडक्शन देने के लिए. थैंक यू सर. आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज ग्रीन जर्नी फॉर सिटीजन्स ऑफ नागपुर. इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मैं पिछले 3-4 साल से नागपुर मेट्रो के साथ एसोसिएटेड हूँ. हम लोग VNIT की तरफ से कुछ ना कुछ डिस्कशन मेट्रो के साथ करते रहते हैं कि नागपुर मेट्रो में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए.
और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब भी हम कुछ प्रपोजल या कुछ डिस्कशन के लिए लेके गए हैं, यही जवाब सामने से मिला है कि सर ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि हमने एक प्रपोजल इनसे बात करी कि बाइसाइकिल को इंटीग्रेट क्यों नहीं किया जाता, तो हमें बताया गया ऑलरेडी कर लिया गया है। नागपुर मेट्रो का एक पूरा बाइसाइकिल प्लान है, तो जहां जहां मेट्रो चल रही है बाइसाइकिल को फीडर की तरह यूज किया जा सकता है। उससे भी ज्यादा खुशी मुझे जानकर ये हुई कि आपके पास पब्लिक बाइसाइकिल शेयरिंग की भी एक स्कीम है, और कोई अपनी पर्सनल बाइसाइकिल भी अगर लेके जाना चाहे तो वो मेट्रो में ले जा सकता है। ये शायद ही किसी और शहर में पॉसिबल है, दिल्ली मेट्रो में तो नहीं है, आई एम वेरी श्योर। तो बाइसाइकिल चलाने वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए जो आज की बात करेंगे ग्रीन मोबिलिटी में, जो हमारी एक्सेसिबिलिटी होती है, फीडर होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। महाराष्ट्र मेट्रो वाले हमारे पास VNIT में भी आए, अपने आप से खुद से आए कि कैंपस से हमको अगर ट्रिप्स लेने हैं, डिमांड लेनी है, तो उनकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हम कैंपस में ई व्हीकल्स की प्रोविजन करवाना चाहते हैं, ई साइकिल्स की प्रोविजन करवाना चाहते हैं। सो मैं बस इस पे ये कहना चाहता हूँ कि मेट्रो बहुत प्रोएक्टिवली इस पे काम कर रहा है कि कैसे ग्रीन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को फीडर के लिए यूज किया जाए और कैसे मेट्रो के डिमांड ट्रिप्स को बढ़ाया जाए। सो इसके साथ मैं आज का अपना ये प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ, बस 5 मिनट में लूंगा। Okay, so the first slide says that basically it talks about urban footprint. So एक सिटी को चलाने के लिए क्या क्या लगता है और हम उससे क्या क्या आउटपुट लेते हैं। So input में हम 20 million tons of fuel, 40 million tons of oxygen, 1 billion ton of water, 2.4 million tons of food, 15 million tons of raw material. That is all that goes on an average to run a city. And what the city gives back to the environment is 60 million tons of CO2, 400,000 tons of SO2, 280,000 tons of NO2, 11.4 million tons of industrial and demolition waste, and 3.9 million tons of household and commercial waste. So, ग्रीन मोबिलिटी की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते जा रहे हैं और वो रिप्लेनिश नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, नागपुर की ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, सो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ऐसा है जो हमारे वर्ल्ड की मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है। इट इज द नंबर 1 फोरमोस्ट कंज्यूमर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो हम फॉसिल फ्यूल डिप्लीशन की बात करते हैं, राइजिंग पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस की बात कर रहे हैं, राइजिंग पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसका नंबर 1 कंज्यूमर और नंबर 1 पोल्यूटेंट क्रिएटर इज द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। सो जब भी हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, जैसे दिल्ली में आप सब जानते होंगे हर साल एक ऑड इवन किया जाता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ड्यू टू द पोल्यूशन एंड स्मॉग दैट हैपेंस देयर। सो दिस इज ऑल ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। Next slide please. So there is a very simple question. Do we have the efficient plans to reduce, reuse and recycle these millions of tons of waste and replenish the millions of tons of resources required to run and operate the functions of a city? I don't think we do. Okay. So that is why through each sector, like Nagpur Metro, like National Highways Authority of India, like NMC, like PWD, हर एक sector में if we choose green mobility in our own way, slowly we integrate all the concepts of green mobility and we move towards having an efficient plan for reusing, recycling and replenishing our resources. Next slide please. So green mobility basically is utilizing the existing resources in a judicial way to meet the transportation needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their needs. अगर आप पेट्रोल प्राइसेस की ही बात करें, इट इज आई थिंक टुडे इट इज 97 रुपीज पर लीटर। आप देख ही रहे हैं पिछले 10 साल में पेट्रोल का प्राइस कहां से कहां जा रहा है और इसी स्पीड से जाता रहा तो क्यों प्राइस बढ़ रहा है? क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। एक समय आएगा जब अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे या खत्म हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट ऑल ग्रीन मोबिलिटी इज ऑल अबाउट। तो हम अगर आज से ही इन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कम करें, ग्रीन इनिशिएटिव्स की तरफ मूव करें, तो ये रिसोर्सेज हमारे आगे वाले जनरेशंस के लिए बचेंगे। Next slide please. Next slide. So we'll talk about some strategies and policies, and as I said, I am very happy to tell you that Nagpur Metro is already implementing almost all of these strategies and policies that we talk about. पिछले 10 साल से हम ये पढ़ा रहे हैं, हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं हिंदुस्तान के हर मेट्रो प्रोजेक्ट में, बट सब जगह नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये दिल्ली मेट्रो में भी ये सब कुछ नहीं है, पर ये सब कुछ मैंने देखा है नागपुर मेट्रो में है। जैसे कि पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज,
पूरा जब भी एक मेट्रो का स्टेशन प्लान होता है उसके अराउंड स्टेशन एरिया प्लानिंग के अंदर पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज का पूरा प्लान साथ में आता है। एनएमटी फैसिलिटीज यानी कि आपके बाइसिकल्स, साइकिल रिक्शास, उनके लिए पार्किंग स्पेस, उनके लिए साइकिल ट्रैक, उनको कैसे फीडर मोड की तरह यूज करना है वो इंटीग्रेटेड होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ मेट्रो की बात ना करें, अगर हम बसेस की भी बात करें तो बसेस भी एक फीडर मोड ही है। आप किसी भी बड़ी सिटी की बात करेंगे तो एक बस सिस्टम का और मेट्रो सिस्टम का कभी कंपटीशन नहीं होता है। अ बस सिस्टम ऑलवेज complements and supplements the main trip, that is the mass rapid transit system, that is metro. Okay, so that is the integration of all these three: pedestrian, NMT and public transportation. Then we talk about park and ride. So again, I am very happy to know that park and ride facility is also available at most of the metro stations. Park and ride का मतलब है कि अगर even after providing all the feeder modes possible, अगर आपको फिर भी कोई green mobility का feeder mode नहीं मिल रहा है, so you come by your own vehicle, you park your vehicle and you take the main trip by your metro. So that is known as park and ride. And finally, use of e-vehicles. So again, I am very happy to tell you that e-vehicles are being used and being promoted by Nagpur Metro for all the feeder that is possible. There is e-cycle, there is e-rickshaw and there is e-bus. Right? Next slide please. Please move. There's animation in the slide. Yes. So, अगर हम पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंट ट्रांजिट सिस्टम्स की बात करें तो जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दैट इज मेट्रो, दैट इज ऑन टॉप ऑफ द फूड चेन, वो सबसे बड़ा सिस्टम है। तो हमारे बाकी के जितने भी सिस्टम्स हैं, बस सिस्टम्स, ट्राम, मोनोरेल, बस रैपिड ट्रांजिट, एलआरटी, ये सबसे बड़ा है मेट्रो सिस्टम। और हम हमेशा यही कहते हैं कि एक बस सिस्टम हमेशा एक मेट्रो सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करता है, जो यहाँ नागपुर में भी करेगा। राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में भी हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं दैट द गवर्नमेंट शुड प्रमोट एंड प्रोवाइड एडिक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर। नागपुर में ऑलरेडी देयर आर 2 लाइन्स ऑफ मेट्रो that are being connected through the Sitabardi interchange, so the infrastructure is already being built and promoted. We talk about ensuring sustainable accessibility modes to the PT system. So हम जब sustainable accessibility की बात करते हैं, that is green feeder modes, that is e-vehicles, e-cycles, pedestrian, bicyclists. So these are all sustainable accessibility modes to a PT system. Then we say promote e-vehicles. So that is also happening. And finally, a long-term measure is land use transport policies to reduce the average trip length. तो मुझे ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट इन्फ्लुएंस जोन्स की जब हम बात करते हैं, बाकी शहरों में भी मेट्रो बनने के बाद टीओडी की और इन्फ्लुएंस जोन्स की बात होती है। नागपुर मेट्रो में डिजाइन स्टेज से ही मैंने देखा है टीओडी जोन्स और ट्रांसपोर्ट इन्फ्लुएंस जोन्स मार्क थी, और वहां पे कैसे आपको लैंड यूज ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को चेंज करना है, आपको बिल्डिंग कंट्रोल नॉर्म्स चेंज करने हैं ताकि आपके उस एरिया में एक्टिविटीज और डिमांड्स बढ़े। सो ये सब हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की बात करते हैं एंड दीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड राइट फ्रॉम द डिजाइन स्टेज इन नागपुर मेट्रो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आई विल जस्ट कंक्लूड विद दिस दैट आवर चॉइसेस make a major difference. So अगर हम एक कार ट्रिप करते हैं तो the black balloon that you see, that is basically the amount of carbon dioxide per person kilometer that is emitted when you make a trip by your car or your dual occupancy or motorcycle or train. So you can see walking and bicycling and top range electric vehicles that are run by green power, they have almost negligible amount of carbon emissions. So that is green mobility. वही ट्रिप अगर आप अपनी गाड़ी से करते हैं या बाइक से करते हैं तो यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशंस 243 ग्राम्स पर पैसेंजर किलोमीटर। और वहीं हम रोड स्पेस की भी बात करें तो रोड स्पेस में भी आपका पर्सनल कार सबसे ज्यादा स्पेस लेता है, और आपका जो ट्रेन जर्नी है दैट इज मेट्रो, दैट ऑक्यूपाइज द मिनिमम रोड स्पेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दिस इज वन कॉमन इमेज, शायद आप लोगों ने देखी हो। तो आप अगर अपनी पर्सनल कार से 50 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप रोड पे इतनी स्पेस लेते हैं। वही 50 लोग अगर साइकिल चला रहे हैं तो वो इतनी स्पेस ले रहे हैं, और वही 50 लोग अगर एक बस में या एक मेट्रो सिस्टम में है तो वो सिर्फ इतनी स्पेस ले रहे हैं। तो जब हम रोड स्पेस की और कंजेशन की बात करते हैं तब भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हमेशा सबसे एफिशिएंट हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल उस सस्टेनेबिलिटी की बात हो, चाहे वो रोड ऑक्यूपेंसी और कंजेशन की बात हो। मिस्टर राजेंद्र जिंदल, डॉक्टर उदित जैन सर ने बताया कि मेट्रो सबसे नागपुर में डिजाइन स्टेज से
ये यूनिकनेस है महा मेट्रो का। हमारे एमडी सर, ऑनरेबल एमडी सर डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित, उनका विजन, उनकी सोच, वो लेवल से ये सब चीजें बिल्कुल इनिशियल स्टेज से इम्प्लीमेंट की, इसलिए पूरे इंडिया में नागपुर मेट्रो का यूनिकनेस है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर राजेंद्र जिंदल से कि वो अपना प्रेजेंटेशन दें। Good afternoon, everyone. Yeah, so today I will talk about how technology can help in connectivity. So we all know that जो 21st century है वो अपने इंडिया की टेक्नोलॉजी मींस इंडिया का टाइम है, because everyone is focused in IT and how IT can help us in connectivity. So today we will show what we are trying to do to make everything connected within a particular city. Next slide. So we all know that जो हमारी मेट्रो हम जो यूज करेंगे या कर रहे हैं, हमारे को कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा इशू क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मैं घर से हूं, मुझे मेट्रो जाना है तो मैं कैसे जाऊं। मेट्रो से मैं कहीं उतरा तो फिर मुझे वहां पे भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लगेगा जिससे मैं मेरे डेस्टिनेशन, मेरे ऑफिस, मेरे स्कूल, मेरे कॉलेजेस में जा सकूं। तो हम लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं जिससे जो कनेक्टिविटी है वो सीमलेस हो जाए, स्मूथ हो जाए। हम हमारे घर से हमारे ऑफिस तक जाने के लिए मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्रिफरेबली ओनली मेट्रो एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस, मीन्स हम चाहते हैं कि मेट्रो ज्यादा से ज्यादा यूज हो सबके, मीन्स जितना अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बनाया है, हम एज अ सिटीजन ऑफ नागपुर हम उसे यूटिलाइज करें। नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्सेप्ट ये है कि कनेक्टिविटी कैसे बिल्ड करना। नाउ द मेन क्वेश्चन इज, मुझे मेरे घर से मेट्रो तक जाना है। अगर कनेक्टिविटी बिल्ड करना है तो सब लोगों को टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ एज ग्रुप्स, करेक्ट। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग समथिंग यूनिक विद इन द सिस्टम सो दैट अगर किसी के पास मोबाइल फोन नहीं भी है तो भी वो यूजिंग द टेक्नोलॉजी वो ट्रैवल कर सके। इट हेल्प्स इन फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी ऑल्सो, मीन्स घर से मेट्रो तक जाने के लिए और मेट्रो से अपने ऑफिस जाने के लिए। अगर मेरे पास मोबाइल है तो गुड है, अगर नहीं है तो भी सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा एंड आप यूजिंग द सिस्टम, थ्रू द सिस्टम आप ट्रैवल कर पाओगे। नेक्स्ट स्लाइड। जो हमारा ये जो सिस्टम है इसमें हम मेनली फोकस्ड है ऑटो रिक्शा पे, बिकॉज जो ऑटो है वो आपको छोटी राइड, स्मॉल 2 किलोमीटर की राइड, 3 किलोमीटर की राइड में आपको सपोर्ट करता है। पीपल कैन यूज ऑटो रिक्शा टू रीच टू मेट्रो, और मेट्रो में ट्रैवल करने के बाद अपने ऑफिस, कॉलेज, स्कूल में जाने के लिए वो ऑटो रिक्शा यूटिलाइज करे। तो ये ऑब्जेक्टिव के साथ हमने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है एंड इट इज ऑलरेडी लाइव इन गूगल प्ले स्टोर। नेक्स्ट स्लाइड। एंड जो इसके रेट्स है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, जो अपने आरटीओ के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र के जो रेट्स है उसी रेट पे आपको कन्वीनियंस मिलेगा, आपको कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना है एंड इवन देयर इज नो चार्ज फॉर द ऑटो ड्राइवर्स, means it is not made to earn. Next is about the connectivity. Basically, if I know how to use a mobile phone, I know how to use a mobile application. So the most important part comes is the information. अगर मेरे पास मेट्रो का टाइम टेबल है, अगर मेरे पास फीडर बस जो कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कर रही है, अगर उसका टाइम टेबल है, उसका रूट का मुझे नॉलेज है, तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी सीमलेस। मुझे पता है कि मैं कितने बजे घर से निकलूं जिससे मैं ऑफिस अपने सही समय पे पहुंच सकूंगा। तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आपको जितनी बसेस है जो फीडर बस मेट्रो चला रही है उसका आपको शेड्यूल मिलेगा, उसका आपको रूट मिलेगा। नेक्स्ट। अब जस्ट यस्टरडे आई विजिटेड एयरपोर्ट और मुझे पता चला कि नागपुर सिटी में एक महीने में अराउंड 2 लाख पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। अगर एयरपोर्ट के जो ट्रैवलर्स है, अगर हम इनको सपोर्ट करें, हम इनको बोले कि हम मेट्रो में आए, तो वी कैन इंक्रीज द राइडरशिप बाय 2 लाख पीपल इन अ मंथ। वी कैन टारगेट दैट पीपल। तो उन लोगों को टारगेट करते हुए हम इसमें फ्लाइट का अराइवल्स एंड डिपार्चर्स भी दिखा रहे हैं, जिससे ये टाइप के कस्टमर्स जो पैसेंजर्स है ये हमारे साथ जुड़े रहे। ये लोग देखते रहे कि हाँ अभी मुझे ये वाली मेट्रो मिलेगी, मेट्रो से उतरने के बाद मेरी फ्लाइट कितनी देर में आ रही है। एंड सिमिलरली वी आर ट्राइंग टू कम अप विद द रेलवेज ऑल्सो।
जिससे रेलवे का भी जो कनेक्टिविटी है, जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अपने नागपुर का, अपने इंडिया का, वो सब कुछ हम अचीव कर सके, कनेक्ट कर सके। नेक्स्ट। नाउ फॉर एवरी यूजर, नाउ मीन्स अभी आप देख रहे होंगे कि हर जन अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहता है कि कुछ ना कुछ मुझे मिले। तो वी हैव लॉन्च सम यूनिक कॉन्सेप्ट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। जस्ट लाइक हमारी मेट्रो बहुत एडवांस्ड है। अगर आप देखोगे इंडिया में 17 मेट्रोज है, इसमें सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकली एंड बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से नागपुर मेट्रो है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट में हम लोग भी मोटिवेट हो गए कि कुछ नया करना है हमें फॉर नागपुर मेट्रो एंड फॉर द सिटीजन्स ऑफ नागपुर। तो हमने कॉन्सेप्ट लाया है कि जितना आप ट्रेवल करते हो मेट्रो में, आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा। उस तरीके से हमने 500 शॉपकीपर्स को ऑनबोर्ड किया है, जो खुद नागपुर मेट्रो को प्रमोट कर रहे हैं कि आप आओ, आप अगर नागपुर यूजर हो, नागपुर मेट्रो यूजर, तो यू विल गेट सम बेनिफिट। तो ये तरीके से इन लास्ट 15 डेज हमारी 5000 टिकट्स स्कैन हो चुकी है एंड ऑलमोस्ट द वैल्यू ऑफ दैट टिकट इज अराउंड 70,000 रुपीज। सो जो ये कॉन्सेप्ट है, ये लोगों को बहुत अच्छा लगा है कि जस्ट बिकॉज दे आर यूजिंग मेट्रो दे आर गेटिंग रिवॉर्डेड। नेक्स्ट। हमें एज अ सिटीजन लास्ट 25 ईयर्स से मैंने एक चीज देखा है कि मुझे नागपुर में यही नहीं पता होता कि मेरे पास वाली दुकान कौन सी है, पब्लिक टॉयलेट्स कहाँ है, जो यूटिलिटीज होती है कॉमन पर्सन को, वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। तो हमने ट्राई किया है कि हम इसमें ये भी चीज डिस्प्ले करें, जिससे अगर मैं किसी मेट्रो स्टेशन में उतरा तो मुझे पता रहे कि अगर मुझे फार्मेसी लेना है, ग्रोसरी लेना है, तो मैं कहाँ पे जाके ले सकता हूँ। इससे जो बिजनेस है ये लोकल शॉप्स का भी बढ़ेगा, प्लस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूटिलाइजेशन भी होगा। नेक्स्ट। हम लोग अभी जो है इसमें एंड्रॉइड, सिर्फ एंड्रॉइड में है प्ले स्टोर में, एंड सून वी विल बी कमिंग इन द iOS। एंड द मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम सब कनेक्टेड हो जाए। हम जैसे फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से कनेक्टेड हो गए, तो हम क्यों ना हमारे ट्रांसपोर्टेशन में भी कनेक्टेड हो जाए। ये कनेक्टेड कब होंगे? जब हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। रेलवे, मेट्रो, फ्लाइट, बस, ऑटो, कैब, ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कनेक्टेड रहेंगे, तो पैरेलल नेटवर्क नहीं डेवलप होगा। अगर आप देखोगे ओला, उबर जब आए या कोई भी कैब एग्रीगेटर, तो उन्होंने क्या किया, अपनी प्राइवेट व्हीकल्स लेके आए। वी शुड यूज मेट्रो, वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट्स इट। एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल द मेट्रो ऑफिशियल्स कि उन लोगों ने हमें ये मौका दिया कि हम लोग कुछ बनाए और कुछ बना के अपने सिटीजन्स के लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करें। थैंक यू सर। बोलिए सर। सर मेरा रहना रविनगर स्क्वायर में है और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन शंकर नगर स्क्वायर में है, और यदि मुझे वहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, तो मेरे घर से मेरे सामने बस स्टॉप है और वहाँ पर जो बसेस जाती है वो रेगुलर बसेस जाती है, अपनी सिटी बसेस, माझी आपली बस। तो क्या वो बस में अगर मैं बैठ के मेट्रो के स्टेशन पे जा सकता हूँ, तो उसमें वो कंबाइंड वो टिकट वो मिल सकेगा कि इसका मुझे अलग रहेगा? जैसा आपको बोल रहे थे कि मल्टी मॉडल की इसमें, तो थोड़ा बता सकते सर प्लीज। रंजित, आपकी बस को कैसे मैं यूज करूं? हाँ यस सर। नहीं, आप कंसेप्ट बिल्कुल सही है। ये हमने एक ना, अभी हमको जर्मन गवर्नमेंट ने एक ग्रीन जर्नी प्लानिंग ऐप, ये ऐप बनाने के लिए हमको महामेट्रो को 2 लाख यूरो ग्रांट का एग्रीमेंट भेजा है। और वो इसलिए है कि आपकी दिस लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी उसमें सभी मोड दिखेंगे भी, और आपका व्हाट इज द चीपेस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रेवल दिखेगा, और वो चीपेस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रेवल दिखने के साथ साथ आपको ऑप्शन भी रहेंगे कि आप साइकिल से जाते हो तो साइकिल अवेलेबल है, ई रिक्शा से जाते हो तो बस से जाते हो, तो जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका टोटल फेयर कितना है वो आपको पता चलेगा। टोटल सभी टिकट बुक होंगी, ऐसा वो ऐप में बनाने का उनका ये है, हमसे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है। तो ये ऐप ग्रीन जर्नी प्लानिंग ऐप आपका जो विजन है उसको इंप्लीमेंट करेगा ऐप बेस में। आप घर से ये पूरी जर्नी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए आगे की नेक्स्ट स्टेप यही है। अभी तो आपको सिर्फ दिखेगा क्योंकि एनएमसी उनकी टिकट लेके आपको जाना पड़ेगा, अभी आपको दिखेंगी बस,
लेकिन टिकट आप मेट्रो की बुक करेंगे और हमारे मेट्रो ऐप से, हमारा मेट्रो का भी ऐप है जो मेट्रो की टिकट बुक करा देता है। भारत राइट से ऑटो बुक होते हैं, तो भारत राइट में आपको इन्फॉर्मेशन सब मिलेंगी, लेकिन बुकिंग अभी जो एक नया ऐप बनाने वाले हैं उसमें से आएंगी। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, हड़स हाई स्कूल बालक। हेलो सर, मेरा सवाल था कि जो ऑटो की आपने स्लाइड जो बताई राइट ऐप में, क्या वो जो ऑटो आप प्रोवाइड करने वाले हो क्या वो डिजिटल रहेंगे? क्योंकि वर्तमान में देखा जाता है नागपुर सिटी में कि जो ऑटो जो चल रहे हैं उसमें कहीं पर भी मीटर्स दिखाई नहीं देते। ऐसे में मैं कैसे काउंट कर पाऊँ? क्योंकि मैंने दिल्ली में खुद मेट्रो में राइड किए, वहाँ पे सारा डिजिटलाइज हो गया है, तो मुझे कहीं जाना है तो मैं इजीली उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पर तो ऑटो वाले लूट कर देंगे, क्या ये ऑटो डिजिटल होंगे जिसके कारण इजीली पड़ जाएगा सबको? सर गुड क्वेश्चन। नागपुर का करंट सिनेरियो देखते हुए हमने एक नई चीज इसमें लाई है फॉर द ऑटो वाला। उनके लिए क्या किया हमने, अगर आपके पास मोबाइल ऐप नहीं है और आप एक नॉर्मल पैसेंजर हो और अगर वो भारत राइट से कनेक्टेड है ऑटो वाला, तो वो अपनी ऐप से ही ट्रिप स्टार्ट कर सकता है। मीन्स हम जो अभी तक देखते आए हैं वो ये रहा है कि हमेशा कस्टमर के पास ऐप होना जरूरी है जिससे वो बुक करेगा और वो बुक होने के बाद ही ट्रिप चलेगी। ऐसा नहीं है, अगर कस्टमर के पास मोबाइल ऐप नहीं है तो भी वो उस ऑटो वाले के पास जाके अगर वो सिस्टम से वर्क करता है तो वहीं से उसकी ट्रिप स्टार्ट होंगी एंड एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड आपके डेस्टिनेशन के हिसाब से, या फिर जैसे हम मीटर का ऑटो चलाते हैं तो जहाँ तक वो छोड़ेगा आपको तो उसके हिसाब से किलोमीटर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगे और आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि 25 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज ऐसा। तो तीनों मोड, विद मोबाइल ऐप, विदाउट मोबाइल ऐप, और मुझे डेस्टिनेशन भी नहीं पता तो भी मैं जा सकता हूँ यूजिंग दिस ऐप। लेकिन ये चैलेंजेस नहीं लगता है कि क्योंकि नागपुर में मैक्सिमम लोगों को टू व्हीलर से जाने की बहुत ज्यादा आदत है, बहुत ज्यादा पैमाने पर टू व्हीलर यूज करते हैं। कोई अगर मेट्रो स्टेशन भी जाता है तो शायद वो वहाँ पर अपनी पार्किंग टू व्हीलर की लगाकर फिर मेट्रो से राइड करे। थोड़ा चैलेंजेस नहीं लगता है क्या सर? करेक्ट सर, अगर आप देखोगे अगर वो टू व्हीलर लेके नियरेस्ट मेट्रो तक जाता भी है तो भी उसको अपने ऑफिस जाने के लिए कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लगेगा। वो दोनों जगह टू व्हीलर तो रखेगा नहीं, कोई भी जन दो टू व्हीलर्स तो रखेंगे नहीं। तो वही है कि अगर आप टू व्हीलर भी ना यूज करते हुए अगर आप घर से ही एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लो, मेट्रो तक पहुंचो और वहां से जाओ, तो आपके लिए वो जो एसेट्स है टू व्हीलर, फोर व्हीलर, वो आपका पैसा भी नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच। अभी आप देखिए ना कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं, 50,000 राइडर्स हमारे मेट्रो में है, रोज 20,000 राइडर्स आते हैं। तो ये सब है ना, लोगों को उनको कंफर्टेबल, उनको सेफ, ये सब चीज लग रही है, इसलिए सब लोग आ रहे हैं। और being sentimentally attached to metro since long, well, perhaps you might be knowing that that is how we have been trying. I just want to ask one question. What is the plan of increasing ridership all over Nagpur? What special plans you have? we actually from the beginning of this project, everything is planned. जस्ट डॉक्टर सर ने बताया कि हम मेट्रो से पूछते हैं कि आपने पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग स्कीम किया गया, चालू किया। इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमारे एयरपोर्ट में, अजनी में, राहटे में, मेट्रो भवन में, सब जगह पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल टू व्हीलर 1.5 रुपए पर मिनट। साइकिल सीताबर्डी में अभी आप देखेंगे, लोकमान्य नगर में हर जगह पर साइकिल की प्रोविजन, हर जगह पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की। चार्जिंग स्टेशन ये 6 स्टेशन बनने के साथ साथ सुभाष नगर में 12 ई रिक्शा के साथ, ई रिक्शा भी वो सर्विस प्रोवाइडर के, वो ई रिक्शा वहां की कनेक्टिविटी देंगे, वासुदेव नगर की, बंसी नगर की, वहां से जाने वाले। तो ये सब लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्लानिंग के बेसिस पर ही हो रहा है।
प्लानिंग तो जरूर है सर। उसको इम्प्लीमेंटेशन भी वही हो रहा है, आप देखेंगे ना तो आपको हर जगह इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन क्या है सबका एक्सेप्टेंस धीरे धीरे होता है। जैसे मैंने पूरी स्कूटर भी चालू किया है ना, तो दिन में 8 राइड होती है, जबकि वो दिन में 50 राइड होने को ना। 20 स्कूटर है, 20 स्कूटर में सिर्फ 8 स्कूटर यूज हो रही है। कारण क्या, लोगों का एक्सेप्टेशन धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आएगा, लोगों को दिखेगा तब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये शुरू हो गई है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर। I'll just say that we are here forgetting, no problem, please. We are just forgetting that last year, the way we have traveled through the last year, from March to December, this has been really very, disappointing time, COVID. So, if this would not have been there, then the intimacy could have been developed between the Nagpur citizens and the metro. That last year, and that was very crucial. If you see, Reach 3 had opened in January, and Reach 1 was opened in 2019 March. So after that, the metro could not see the sufficient time, and this COVID situation has come last year. Otherwise, I feel the ridership would have gone double what ridership we are having today. Like today we have 24,000, is almost every day it is happening. And 26th of January, the ridership went to 56,000. Because, and on that people that had feeling, no, all kind of aspects are being taken care by the metro, the sanitization, COVID related, all safety precautions are being taken by metro. Now people have broken that psychological barrier, and now people have come out and they are using the facility. The result you are going to see now, it will be very, very positive. You will see this, sir. Thank you sir. चौहान सर, थैंक यू। सर आपका सवाल बहुत अच्छा था, इसलिए मैं उस पर कुछ कहना चाहूँगा। सर जब भी हम किसी मेट्रो सिस्टम की बात करते हैं तो हमेशा हम ये चाहते हैं कि उसकी राइडरशिप बढ़े, जितनी ज़्यादा राइडरशिप हो उतना अच्छा हो, जितनी डिमांड बढ़े उतना अच्छा हो। बट डिमांड बढ़ाने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि एक जो इंसान अपनी गाड़ी से या 2 व्हीलर से जा रहा है वो किस स्थिति में अपना पर्सनल व्हीकल छोड़ के मेट्रो से जाएगा। हमारे रिसर्च फील्ड में भी सबसे मुश्किल काम होता है एक पर्सनल व्हीकल यूजर को पर्सनल व्हीकल छुड़वा के मेट्रो पे लाने का। तो उसके लिए जो एक मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है वो है आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सर्विसेज उस लेवल तक इंप्रूव करनी है कि जो आपका डोर टू डोर ट्रैवल टाइम है आपके ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक आपके पर्सनल व्हीकल में जितना लग रहा है उतना या उससे कम आपको अगर ट्रैवल टाइम एक मेट्रो सिस्टम डोर टू डोर दे पाएगा तो आपकी राइडरशिप अपने आप बढ़ेगी। और उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर आप मेट्रो स्टेशन के बहुत पास हैं तो आप फुटपाथ से वॉक करके जाएंगे, थोड़ा ज्यादा दूर हैं तो आप बाइसिकल से जाएंगे। वो बाइसिकल आपकी अपनी हो सकती है या पब्लिक बाइक शेयरिंग स्कीम की हो सकती है, तो वो भी दोनों चीजें इंटीग्रेटेड हैं ऑलरेडी। थोड़ा और दूर रहते हैं आप तो या तो आप अपना 2 व्हीलर लेके पार्क करके जाएंगे या फिर आप जैसे भारत राइड जैसी एप्स को यूज करके आप कोई ऑटो रिक्शा बुक करेंगे उससे जाएंगे, या इनके जो फीडर मोड्स में ई ऑटो रिक्शाज, ई बसेस, ई व्हीकल्स हैं उनको यूज करके जाएंगे। तो इन सब का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज मल्टी मोडल इंटीग्रेशन, और वो सब कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारे मेट्रो सिस्टम को राइडरशिप बढ़ाने के लिए। सर ऐसा है कि जो सिक्योरिटी जो पार्किंग फ्री दिया है, मैं समझो 2 दिन के लिए बाहर पार्किंग करके जा रहा हूँ तो उसकी जो सिक्योरिटी रहेगी वो व्हीकल की वो जिम्मेदारी किसकी होगी। सवाल यह है कि फ्री पार्किंग होने के बाद सिक्योरिटी नहीं रह सकती क्योंकि वो पेड जॉब रहेगा। तो ये सिस्टम यदि मेट्रो चालू करे कि आप चार्ज करो, जैसे रेलवे स्टेशन पे होता है या बस स्टैंड पे होता है कि आप फ्री मत दो, आप चार्ज करो 12 आवर्स के लिए इतना, 10 आवर्स के लिए इतना, एक एम्प्लॉयमेंट भी डेवलप हो सकता है उसमें से और सिक्योरिटी भी होती। तो आदमी वर्धा गया बोलो या कोई भी गांव को गया, 2 दिन के लिए गया या 3 दिन के लिए गया तो उसकी व्हीकल्स परफेक्ट रहेंगी और उसको चार्जेस देना है तो देना ही पड़ेगा, लेकिन एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगी और सिक्योरिटी गारंटीड रहेगी। क्योंकि ये गाड़ी आज फ्री रखी है मैंने तो मुझे ये भरोसा नहीं हो सकता कि आने के बाद मेरी जगह पर गाड़ी रहेंगी, क्योंकि उसका वाली कोई नहीं है, उसको सिक्योरिटी कुछ नहीं है। तो ये
दृष्टि से मेट्रो ने यदि स्टडी किया तो इट कैन जनरेट एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट तो नक्की है और रेवेन्यू भी कलेक्ट हो सकता है मेट्रो की। लॉन्ग टर्म पार्किंग सिक्योरिटी का कुछ ऑटो स्टेशन कोई जा रहा है अगर 3-4 दिन 100% आपको ये हम वैसे ही बताते हैं कि हर पार्किंग जो हमारी है वहाँ सिक्योरिटी है ही। अभी आप उसको कॉस्ट हम कम कर रहे हैं, यानी कॉस्ट यानी नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे जैसे इसका ये होगा वो तो उस मैकेनिज्म वैसे ही होगा, चार्ज लगेगा उसको पूरा की पूरा तरीके से वो सब करेंगे। आपका सजेशन बिल्कुल अच्छा है, लेकिन मेरी बाइक जो है खापरी स्टेशन रखता हूँ और फिर वहाँ से ट्रैवल करके शाम को घर जाता हूँ। संडे के दिन वो वही रहती है और वो ये गए अभी 4 महीने से 3 महीने से मैं कर रहा हूँ, तो मेरी बाइक एक वहीं पे रहती है। मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया मेरे गाड़ी के साथ। देखिए मैं बोला ना रहती है और वहाँ कैमरे लगे हुए हैं और गार्ड भी रहता है नाइट में, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आया उसके बाद। इवन कभी मुझे बाहर का जैसे अकोला या मुंबई वगैरह भी जाना रहा तो मैं बर्डी के जो अपना पार्किंग है वहाँ गाड़ी छोड़ के वहाँ से ऑटो करके फिर जाता हूँ वापस आता हूँ, तो सेफली रहती है गाड़ी। इतनी बार स्टेशन पे पार्किंग में मेरी रात पड़ रही है, ऑटो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं वही बताया इनको कि सिक्योरिटी तो रहती है, सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि मेट्रो का आप हर जगह देखेंगे ये बहुत यानी हर जगह का एश्योर्ड सिस्टम है कि वहां नहीं गया जो आपका उनके प्रीमाइसेस में वहां बिल्कुल परफेक्ट सब काम रहता है। अभी अनिल चकोनेकर सर से मैं चनाकेकर सर से मैं निवेदन करता हूँ कि अगर वो कुछ बताना चाहें। सर येऊन जा सर, स्टेजवर या। हाँ बोला क्या, और वो दूसरा बालक कौन? शार्दुल केलकर, सरस्वती स्कूल स्टूडेंट, प्लीज कर। मेट्रो में हमेशा बैठकर ही जर्नी करता हूँ तो यहाँ बैठना जरा अफोर्ड हो रहा। बात ऐसी है दोस्तों, मराठीत बोलायला चालेल का? मराठीत जरा फ्लुएंट बोलता येईल? आता जे प्रश्नोत्तर झाले ते जरा गंभीर स्वरूपाचे आणि फार ज्ञानवर्धक झाले। माझं बोलणं अगदी साधं आहे की महामेट्रो नाही, माझ्यासाठी हे महास्वप्न आहे। आमच्या नागपूरकरांसाठी ही अशी इतकी वैभवशाली गोष्ट निर्माण झाली की आमचा विश्वास ठेवणं आम्हाला कठीण वाटत आहे। आज जयप्रकाश नगरवरून बसल्यावरती एखाद्या घसरगुंडीवरून घसरत जावं तसं बर्डी देतो आम्ही आणि घसरत जावं तसं धरणपेठेत पोहोचतोय शंकरनगरला। कसलंही श्रम नाही, काही चार्ज म्हणजे निग्लिजिबल चार्ज, त्याला काही भाडं आपण म्हणणारही नाही आजच्या काळात। कारण माझ्या घरून मला जर शंकरनगर पर्यंत जायचं असेल तर किमान 100 रुपये खर्च येतो ऑटोचा, तो मी केवळ 10 रुपयातच पोहोचतोय। त्यामुळे तो आनंद माझा अगदी गगनात मावत नाहीये आणि लक्झरियस म्हणजे इतकं की मी सांगू शकत नाही। तुम्हाला कसलाही त्रास नाही, 2 रस्ते क्रॉस करून या, मेट्रो चढा, तिकडून 1 फरलांगभर चालत जा, जे या वयात मला अत्यावश्यक आहे, ते 1.5 फरलांग चालत जाणं। पण मित्रो, हे वैभव संपन्न नागपूर आज बघताना मला माझं 50-60 वर्षापूर्वीचं नागपूर आठवतं की रस्त्यांवरती गिट्टी आणि दगड पडले राहायचे। क्वचित जिथे डांबर फेकला गेला तर आम्ही आश्चर्याने पाहतो की आमचे डांबरी रोड होऊन राहिले म्हणून। हे माझं असं खेडं होतं, विस्तृत, मोठं आणि अत्यंत ज्याला असं म्हणतात की त्रिशंकूसारखी अवस्था माझ्या शहराची होती। म्हणजे थोडंसं फ्लॅशबॅक मध्ये मी 1-2 मिनिटं जातो, जास्ती वेळ घेत नाही आपला। पण आम्ही नागपुरात जेव्हा शिक्षणासाठी आलो, नागपुरातच आम्ही जर प्रायमरी पासून शिक्षण घेतलं, तर माझं हे शहर, हे त्रिशंकू शहर एक राजधानी होती, त्यानंतर मग ती मुंबई राज्यात गेली आणि मग आम्ही 3ऱ्या स्टेजला महाराष्ट्रात आलो। म्हणजे राजधानीचं शहर जर आज भोपाळ, रायपूर आणि रांची वगैरे तुम्ही 50 वर्षापूर्वीचं बघितलं असेल आणि आजचं बघितलं असेल तर जमीन आसमानचा फरक पडलेला आहे। पण माझ्या शहरात गेल्या 20-25 वर्षापासून फरक पडतोय फक्त। आणि मला सांगायचं आहे की ही जी काही मेट्रो आज सुरू आहे, अजून जनसामान्यांपर्यंत ती पोहोचतच नाहीये। ती पोहोचली पाहिजे। म्हणजे जे वाटेवरती जे प्रवासी, अजूनही आपण शहरातून चालताना हे नागपूर इतकं सुरेख, इतकं सुंदर आणि इतकं विशाल, इतकं हिरवगार आहे
हे मला मेट्रोतून कळलं. नागपूरमधून मेट्रोतून प्रवास करताना साहित्य संघाची इमारत किंवा विद्यापीठ ग्रंथालय किंवा अंबाझरी एखाद्या चित्रात बघतोय मी असं मला वाटायला लागलं. आणि इतकं हिरवं नागपूर आहे याची जाणीव मला मेट्रोने दिली. पायी चालताना किंवा स्कूटरवर जाताना मला शहराचं दर्शन नाही घडलं, हे मेट्रोने मला दर्शन दिलं. आणि आज माझ्या नागपुरात नाही म्हटलं तरी एक अशी एक लक्ष्मण रेषा आहेच. पूर्व आणि पश्चिम नागपूरची एक रेषा आहेच, ती त्याला काही इलाज नाही आहे. पण ही मेट्रो अशी आहे की ही माझी लक्ष्मण रेषा संपवणार आहे. मला इथून माझ्या घरून बसताना धरमपेठेतून किंवा राजीवनगर मधून बसताना चितारावीतला गणपती मेट्रोतून घेऊन घरी येताना मला हे एक वैभव मला दिलाय या मेट्रोनी. आणि इंदोरा आणि नारी चौकातून माझा माणूस, तिथला माणूस अंबाझरी आणि महाराज बागेत सहज जाऊ शकेल काही श्रम न करता. तर ही माझी मेट्रोला मी एवढं सलाम सांगतो की मेट्रो तुझे सलाम. रोज था उन दिनों जब छत्रपति का पुल टूटने देखा था. उम्र छोटी मन चंचल था. तसल्ली हुई थी जब पिता ने मेट्रो की टंक पंक्ति पढ़कर सुनाई थी. आज का दुख कल का सुख. आज मैं कल का युवा, नसों में जोश, आंखों में सपने, मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए रोज निकल पड़ता हूँ अपने कर्म पथ पर. दो अभिन्न मित्रों के साथ, एक मेरी साइकिल, दूसरी मेरी मेट्रो. कहानी बड़ी रोचक है मेरे मित्रों की. एक दौड़ती हवा से बातें करती, साथ में शारीरिक मेहनत भी करवाती. दूसरी का क्या कहना, पटरी पर दौड़ती मानो हवा में उड़ती. मुझे और मेरी साइकिल दोनों को गंतव्य तक ले जाती. मेरी दिनचर्या कुछ ऐसी: प्रातः व्यायाम और साइकिल से भ्रमण, फिर थोड़ा अध्ययन, पश्चात कॉलेज जाने की तैयारी. उठाई साइकिल, चढ़ दिए मेट्रो स्टेशन जयप्रकाश नगर. कुछ पल का इंतजार, हुए दोनों मेट्रो में सवार. द्रुत गति से चढ़कर कुछ स्थानकों पर रुककर नियत समय में वर्दी स्थानक पहुंचा दी. यह यात्रा भी बड़ी रोचक. लैंडमार्क जैसे रेडिसन ब्लू, सेंट्रल जेल, यशवंत स्टेडियम को रोज देखने का अवसर देती. अगला प्रवास बरडी से शंकर नगर. चल दिए फिर हम तीनों साथ. शंकर नगर में है मेरा कॉलेज सरस्वती विद्यालय, जहां अध्ययन करता हूं मैं. शाम को एक बार होता है इन्हीं दो मित्रों का साथ. कॉलेज से घर तक चल पड़ते हैं हम तीनों यार साथ साथ. मेरे इन दो मित्रों को अत्यंत खुशी होगी आप जैसे मेरे ऐसे अन्य युवाओं के साथ मित्रता करते हुए. आपका शार्दुल केड़कर. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. विंडोज हैं, काउंटर्स हैं स्टेशन पे, उस पे जाके भी आप टॉप अप करवा सकते हैं इस पे. और एक नागपुर मेट्रो का मोबाइल ऐप भी है जिससे कि QR टिकट जनरेट होता है और उसको, तो ये एक हेजल फ्री मीन्स है हमारे. इसके लिए आपको फिर किसी क्यू में नहीं लगना पड़ेगा किसी टिकट को लेने के लिए. कार्ड से आप डायरेक्टली जाके स्टेशन में जो एंट्री गेट होते हैं वहां टैप इन करना है. जिस स्टेशन पे आपकी एग्जिट है वहां एग्जिट गेट पे टैप आउट करना है. तो आपकी जर्नी लेंथ के अकॉर्डिंग आपका फेयर डिडक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा उसमें से. और मोबाइल QR में आप QR जो हमारा मोबाइल ऐप है उसके थ्रू अपनी टिकट बुक कर सकते हैं. वो मोबाइल ऐप में और भी बहुत सी फैसिलिटीज हैं, जैसे कि उसमें जो कोई भी नियरेस्ट, आप एक तो GPS के थ्रू वो आपको बताएगा आप जिस लोकेशन पे हैं वहां से नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है, वो एक गाइड करेगा आपको और आप अपनी जर्नी बुक कर सकते हैं. और उसमें जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है किसी भी मेट्रो स्टेशन के पास के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. और इस तरह के और भी बहुत से फीचर्स हैं मोबाइल ऐप में. जो मेन हमारे डिस्कशन के पॉइंट्स थे उसमें कुछ बहुत अच्छे सजेशंस भी आए हैं हमको, और हमारी कुछ फैसिलिटीज को, फीचर्स को पैनलिस्ट ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है. अगर इन टर्म्स ऑफ फिगर्स में बात करूं तो हमारा जो महाकार्ड का सेल है सिंस वी लॉन्च्ड इन सितंबर 2019, और कुछ बीच का कोविड पीरियड था जब हमारी सर्विसेज नहीं चल रही थी, तो उसको देखते हुए हमने 10,000 कार्ड सेल का फिगर अचीव कर लिया है. मोबाइल ऐप भी करीब 6,900 डाउनलोड हो चुके हैं हमारे. और अगर टोटल राइडरशिप में हम परसेंटेज देखें तो कहाँ 0% से मतलब शुरू हुआ था वो काफिला हमारा, और आज की डेट में हमारे जो टोटल राइडर्स हैं पर डे के उसमें 13% कंट्रीब्यूशन है मोबाइल कार्ड महाकार्ड यूज करने वालों का. जो टारगेट जरूर हमारा है, क्योंकि जनरली जो मेट्रो के ट्रेन्स हैं तो इवन दिल्ली मेट्रो वगैरह में 70% तक जो राइडर्स होते हैं 70% लोग कार्ड वगैरह यूज करते हैं. हमारा टारगेट भी वही है.
और मोबाइल QR जो टिकट की मैं बात कर रहा था, मंथली अभी करीब 959 जैसे जनवरी में अचीव किया है हमने, जबकि जब लॉन्च हुआ था तब सिर्फ 18 लोगों ने यूज किया था। जनवरी में 959 है, ये फिगर भी हमको काफी बढ़ाना है अभी, क्योंकि मोबाइल QR के अपने बेनिफिट्स हैं। जो हम पेपर टिकट्स ले रहे हैं उसकी एक पेपर भी वेस्ट हो रहा है हमारा, और दूसरा प्रिंटिंग कॉस्ट होती है। एक सजेशन ये भी आया है इसमें, जैसे कि मिस्टर कृणाल बोल रहे थे कि अभी वो SBI की जो ब्रांचेस हैं वहां से वो कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो उनका ये कहना था कि वो कार्ड SBI की ब्रांचेस में भी अभी हम स्टेशन से ले सकते हैं या ऑनलाइन बुक करके, और फाइनली फिजिकली हमको कार्ड स्टेशन से ही कलेक्ट करना होता है, तो SBI की ब्रांचेस से भी वो कार्ड मिलना चाहिए। वी विल ट्राई फॉर दैट, हमें पूरी उम्मीद है SBI विल डू दैट। और बहुत से पॉइंट्स फीडर वाले भी थे, क्योंकि कार्ड और ऐप ऐसी चीज है जो हम लोग काफी हद तक, अब काफी लोग उसके बेनिफिट्स जानते हैं, तो हमको उसको और दैट टू विद एडिशनल डिस्काउंट, तो हमें उसको बहुत प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फीडर सर्विसेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर आदमी ने उसमें सजेशन दिया हमको कि यहाँ से यहाँ फीडर सर्विस होनी चाहिए, यहाँ ई-रिक्शा मिलना चाहिए, ई-बाइक है, बाइसिकल्स हैं, तो गुप्ता साहब ने वो काफी अच्छे से टेक केयर किया हुआ है। तो पूरी उम्मीद है कि जो सजेशन हमारे पैनल डिस्कशन में भी आए हैं वो टेक केयर किए जाएंगे उसमें। और एक मैं और देख रहा था, जैसे कि इसमें भी फिर कार्ड में भी एक कॉन्सेप्ट है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, कि किसी भी कार्ड से आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो हम लोग टेक्निकली हम भी रेडी हैं उस चीज के लिए, जब वो फाइनली लॉन्च होगा तो उसका भी एक तो ये बेनिफिट है कि एक एडिशनल कार्ड आपको नहीं कैरी करना है, कोई भी कार्ड फिर यूज हो सकता है उसके इसमें ट्रेवलिंग के लिए भी। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। मिस्टर कृणाल के भी सजेशंस थे, मिस अलीना, मिस्टर अंशुमन और दीपक जोशी साहब MADC वाले, उनकी तरफ से भी काफी अच्छे सजेशंस आए हैं, जो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उन सारे सजेशंस पे काम करें, और जो माझी मेट्रो है, हमारी मेट्रो है, उसको हम जितना ज्यादा से ज्यादा यूज करें, सक्सेसफुल बनाएं, इट विल बी गुड फॉर एवरीवन ऑफ अस। सो बाय दीज पॉइंट्स आई सम अप and I thank you very much everyone for listening patiently and giving us the opportunity to present about the card and app to you all. Thank you so much. Good afternoon. सेफ जर्नी फॉर वुमेन विषय पर अपने विमर्श कॉन्फ्रेंस हॉल में एक विचार विमर्श का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी में 8 महिला अतिथियों ने महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा विषय पर चर्चा की। सभी सहयोगियों का एक मत से मानना था कि महा मेट्रो सब सुविधाओं से परिपूर्ण, सुरक्षित एवं उत्तम सेवा दे रही है, पर इसके साथ ही उनके कुछ सुझाव भी थे। उनके कुछ सुझाव मैं यहाँ साझा करना चाह रही हूँ। सभी प्रतिभागियों का कहना था कि महा मेट्रो को एक सीरीज ऑफ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करना चाहिए, और उसमें नंबर भी डाल देना चाहिए 1, 2, 3, 4, ताकि कोई मिस हो जाए तो उनको पता चल सके। इन वीडियो में मेट्रो क्या सुविधाएं दे रही है और क्या सुरक्षा फीचर्स है मेट्रो ट्रेन में, स्टेशन पर, ये सारे उसमें बताए हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके कि मेट्रो की जर्नी कितनी सेफ है, और स्पेशली वुमेन्स के लिए तो बहुत ही सेफ है। महा मेट्रो के ऐप में कुछ एडिशनल फीचर्स अगर डाल दिए जाएं, जैसे कि पैनिक फीचर डाल दिया जाए कि एक बटन दबाते ही पता चल जाए वहाँ पे अथॉरिटीज़ को कि यहाँ पे कुछ सुविधा देने की ज़रूरत है, यहाँ पे पहुँचने की ज़रूरत है, और साथ साथ जियो मैपिंग फीचर भी डाल दिया जाए, उसमें ऐड कर दिया जाए, तो ये हमारी सुविधा को और बेहतर बनाएगा। रेडियो FM पर ऐप में डालना चाह रहे हैं, ताकि अगर कोई उठ नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा, वहां तक नहीं जा पा रहा है, तो वो मेडिकल इमरजेंसी में बता सकते जी। रेडियो FM पर भी अगर मेट्रो अपनी सुविधाएं और सुरक्षा फीचर का प्रचार प्रसार करे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच पाएंगी कि हम लोग बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, और किस तरह से वो इतनी सेफ है कि हम अपने बड़े बुजुर्ग और बच्चे दोनों भी इंडिपेंडेंटली भी अपना सफ़र कर पाएंगे। ट्रेन के अंदर ऑडियो वीडियो डिस्प्ले अगर किया जाए, कि वहाँ पर एक छोटी छोटी वीडियो चला दी जाए कि ये फीचर्स ट्रेन में हैं, सेफ्टी फीचर्स, और ये स्टेशंस पर भी अवेलेबल हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम चलेगा कि हमारे यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं।
इसके अलावा एक और सभी लोगों का कहना था कि जैसे 8 मार्च पर वुमेन्स डे आ रहा है, तो एक वुमेन वीक की तरह से सेलिब्रेट करके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की जाए। योगा डे पर योगा वीक ऑर्गेनाइज करके आम लोगों को अगर मेट्रो से जोड़ा जाए, मेट्रो में उस तरह के प्रोग्राम्स अरेंज किए जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपनी बेहतरीन सुविधाओं के बारे में बता पाएंगे और सुरक्षा फीचर्स के बारे में बता पाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन सुविधाओं को इस्तेमाल कर पाएंगे और जुड़ पाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले जो विलास भालेकर जी जो प्रेसिडेंट है 4 लाख मालक ऑटो संगठना वाले, उन्होंने एश्योर किया कि मैं हमारा जो ऑटो वाला जो भारत राइड के कारण जो भारत राइड अपना दुआ बनी है हमारे ऑटो की बुकिंग के लिए और ऑटो को मेट्रो से कनेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए मैं महा मेट्रो का धन्यवाद देता हूं, ऐसा उन्होंने बताया। और उन्होंने एश्योर किया कि हम आगे भी आपके साथ सतत बने रहेंगे और ये जो ऐप बेस्ड सिस्टम है इसको जितना ज़्यादा इफेक्टिव लोग यूज़ करें और हमारा ऑटो उनकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करे। हमारा ऑटो क्योंकि हर स्टेशन में पार्किंग की व्यवस्था है, ऑटो स्टैंड है, तो वो ऑटो स्टैंड से आप ऑटो से जा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से उन्होंने ये बताया कि आप यहाँ का लोगों को आदत नहीं है, बार्गेनिंग करते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन जाना है तो हर ऑटो वाले से बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन आप जैसे मुंबई पहुंचते हैं वहाँ वो बार्गेनिंग बंद हो जाती। तो वैसे नागपुर में एटमॉस्फेयर आना चाहिए, जिससे कारण बोले ये ऐप में गवर्नमेंट डेट से हम चल रहे हैं, तो आपने भी उसको यूज़ करने को नहीं। बार्गेनिंग सिस्टम आप बंद करेंगे तो सब बंद होंगे। उसके बाद में मिस्टर महाजन मैडम ने, श्रीमती महाजन मैडम ने हड़स हाई स्कूल से उन्होंने बताया कि मेट्रो हमारे बच्चों के लिए एक वरदान है और मेट्रो से हमारे यहाँ के बच्चे पूरी तरह से सेफ आते हैं। घर वालों को कोई चिंता, पहले बस में आते थे तो उनका टाइमिंग, कभी एक बस मिस हुई तो 1 घंटे बाद दूसरी बस मिलती थी, तो अभी बिल्कुल टाइम में आते हैं और एकदम सेफ आते हैं और उसको पूरी की तरह से यूज करने की उनकी पूरी मानस रहती है। लेकिन उनका एक और ये रिक्वेस्ट है कि हम चाहते हैं बोले कि हमारे बच्चे आए तो उनको कंसेशन दिया जाए। तो अभी उनको एक्सप्लेन किया गया कि कंसेशन अभी खुद ही 50% कंसेशन है। आप देखेंगे तो बस का रेट ज्यादा है और मेट्रो का 10 रुपए 5 रुपए रेट है आपके उनको, तो नहीं मेट्रो कार्ड में और 10% और एक्स्ट्रा मेट्रो कार्ड यूज करते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलते ही है। उनका यही है कि ये पूरी तरह से सेफ जर्नी है मेट्रो के लिए और हमारे पूरे हड़स स्कूल के बच्चे इसको यूज करते हैं और जो भी आने वाले समय पर जैसे ज्वाइन हो रहे हैं और आ रहे हैं वो यूज करेंगे। तीसरे डॉक्टर उदित जैन ने उन्होंने एक अपना प्रेजेंटेशन दिया और प्रेजेंटेशन में बताया कि नागपुर बोले हम जितनी भी चीज एडवाइस करने के लिए, मैं बोले रिसर्चर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं जितनी भी चीज एडवाइस करने के लिए मेट्रो में आता हूँ तो उनके यहाँ पहले से इम्प्लीमेंट हुई रहती है। जैसे मैंने पीबीएस बाइसिकल सिस्टम, तो हम हमेशा पेडिस्ट्रियन की, उन्होंने पेडिस्ट्रियन सेफ्टी पर अपना पीएचडी किया आईआईटी रुड़की से, तो उन्होंने बताया कि हर मेट्रो स्टेशन में पेडिस्ट्रियन के लिए पूरी फैसिलिटी है, ड्रॉप ऑफ बेस है, साइकिल की पूरी व्यवस्था है, हर साइकिल की प्रोविजन है जगह पर, आप अपनी खुद की साइकिल लेके जा सकते हैं। इवन बोले हम खुद की साइकिल लेके मेट्रो में जाके आपके डेस्टिनेशन पर तक जा सकते हैं, इतना फैसिलिटी दिल्ली में कहीं नहीं है बोले, सिर्फ नागपुर में है। तो ये यूनिक फीचर है, इसलिए हम मेट्रो के लिए हम वी अप्रिशिएट दिस मेट्रो कि जिन्होंने अपने प्लानिंग लेवल से ये सब चीजें को ध्यान में रख के इम्प्लीमेंट किया है। उन्होंने बताया कि कैसे आप कार से चलते हैं तब आपको 400 का कितना, तो 243 आप कार्बन एमिशन करते हैं, वेयर आप 2 व्हीलर से करते हैं तो 119 और मेट्रो से चलते हैं तो 0 एमिशन, पैदल चलते हैं तो 0 एमिशन। तो आप स्विच ओवर होना धीरे धीरे, अपनी जो मेंटेलिटी है वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर सिटी में लिवेबल बनाने के लिए क्रिएट करें और अपने कोई भी कम्यूट के लिए कम से कम पॉल्यूशन जनरेट करें। उसके उपरांत भारत राइड के मिस्टर राजेंद्र जिंदल जो उसके डायरेक्टर है एमएमआई मोबिलिटी के, उन्होंने अपने ऐप के बारे में बताया और ऐप लोगों ने जो डाउनलोड किया है वो 5,000 लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है, कस्टमर ऐप, और 500 ऑटो वाले ने डाउनलोड किया है। उसके अलावा उन्होंने जो फैसिलिटी मर्चेंट को इंक्लूड किया है, यानी जो मर्चेंट लोग हैं वो 500 लोग हो गए अभी मर्चेंट उनके इंक्लूड में, तो वो लोग है ना जो भी टिकट
आप परचेस करते हैं, मेट्रो से ट्रेवल करते हैं, अगर आप वो स्कैन करते हैं तो ये 500 दुकानें में आपको रिएम्बर्स हो जाती हो। आप उसके यहाँ जाएंगे तो ऐसे अभी तक 5000 टिकट लोगों ने स्कैन किए हैं और उसका अमाउंट 70,000 है। तो वो मेट्रो को ये 500 दुकान वाले हैं वो प्रमोट करना चाहते हैं, तो ऐसे वो ऐप में फीचर है, उसमें अभी यहाँ की भी कनेक्टिविटी जो टाइम टेबल है एयरपोर्ट का वो भी दिखेगा। ये सब की कनेक्टिविटी उन्होंने अपने भारत राइट ऐप में बताया और लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि वो सब यूज करें। कुछ लोगों के जो क्वेश्चन थे कि जैसे इनका पास का क्वेश्चन था और कुछ बताया थे कनेक्टिविटी मेडिकल के लिए भी मेट्रो का आगे का प्लानिंग है क्या, तो हमने उनको बताया कि कनेक्टिविटी जो मेडिकल की है वो आपको 4, 7 और 19 नंबर की जो बसेस है वो सीताबर्डी इंटरचेंज स्टेशन में ही रुकती है एनएमसी की, और वो वहां से आपको बस से ट्रेवल करती है, आपको ले जाती है वो जगह पर। और आने वाले फ्यूचर में बोले जैसे दिल्ली में एम्स को सब जगह से कनेक्ट किया, वैसे मेडिकल को भी मेट्रो से कनेक्ट करने का आपका फ्यूचर का कोई प्लान रहना चाहिए। उनका सजेशन है, हम अथॉरिटी के सामने रखते हैं, ऐसा बताएं। तीसरी की एक सजेशन आया कि पार्किंग जो अपन दे रहे हैं हर इसमें, तो पार्किंग में आप चार्जेस लीजिए और वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए जहां जहां पार्किंग स्टेशन में है। तो हमने बताया ऑलरेडी वो सिक्योर्ड है, वो सिक्योरिटी है ही वहां, अभी पैसे नहीं ले रहे हम, वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो पार्क गाड़ी, तो अपने ही जो सुबह जिनका सत्कार किए थे वो खापरी में अपनी गाड़ियां रखते हैं, और वो बताया उन्होंने आंसर ही दिया कि मैंने वो गाड़ी आप हर रोज रखता हूँ, इवन सैटरडे संडे 2 दिन रखी भी रही तो वहां कुछ नहीं होता, पूरे कैमरे लगे, पूरे सिक्योरिटी है, मुझको कभी भी कोई इशू नहीं हुआ। तो दीज आर दी क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, रिस्पेक्टेड मैनेजिंग डायरेक्टर, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स, ऑल एस्टीम गेस्ट्स, सबसे पहले आपको 6वें फाउंडेशन डे की बधाई। जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित किया, जो अभी कंक्लूडिंग सेशन जो हमारा चल रहा है, तो ये प्रोग्राम जो है हमने ये 6वां प्रोग्राम जो आयोजित किया है, ये हमने पूरे 6 साल में अलग अलग थीम्स यहाँ पे यूज करी है। ऑनरेबल एमडी ने हर साल जो है एक नया कंसेप्ट हमें लॉन्च करने के लिए दिया है, और उस कंसेप्ट के साथ हमने हर फाउंडेशन डे को मनाया है। हमने शुरू में हमारे मेट्रो मित्रा जो प्रोजेक्ट में हमें सहकार्य कर रहे थे उनके साथ इंटरेक्शन किया, उनके साथ एक बड़ा मेट्रो मेला हम उसको बोले थे हमारे उस फाउंडेशन डे को। तो नागपुर से कम 100-125 मेट्रो मित्रा जो हमारे प्रोजेक्ट में साथ में थे, उन सबको बुला के हमने उनसे इंटरेक्शन किया, उनका मनोगत सुना। उसके बाद हमने अपग्रेडिंग लाइफस्टाइल, नागपुरियंस लाइफस्टाइल करके एक कंसेप्ट लॉन्च किया था हमारे उस फाउंडेशन डे के लिए। उसमें जो नागपुर के एमिनेंट पर्सनैलिटीज है, डॉक्टर्स है, प्लानर्स है, इन लोगों को बुलाया, उनसे हमने सजेशंस लिया, उनसे लोगों को आह्वान किया कि नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है नागपुरकरों के लिए कैसे फायदेमंद है। शुरू में जो ये एक्सेप्टेबिलिटी जो नहीं थी वो लोगों में लाने के लिए ऐसे सारे कंसेप्ट हमने वहां पे लगाए, दिए लोगों को। तो ऐसे करते करते आज इस बार का जो फाउंडेशन डे जो था, हमने इस कंसेप्ट से लॉन्च किया या मनाया, जो हमारे जो स्टेक होल्डर अब तक हमें प्रोजेक्ट बनाने में साथ दे रहे थे, अभी ये प्रोजेक्ट चलाने में साथ देने वाले हैं, उनकी बातें सुननी है, उनके सजेशन सुनने हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, वो हमारे लिए क्या करना चाहते हैं और हमने उनके लिए क्या करना चाहिए। ये जो इंटरेक्शन का जो कंसेप्ट था वो इस फाउंडेशन डे का था। इसी के तहत हमने इस बार जो हमारे राइडरशिप वॉरियर्स थे, जिन्होंने हमारा जो राइडरशिप कैंपेन चलाने के लिए हमें मदद की, उन लोगों को बुलाया। जो ज्ञानी लोग थे, विद्वान लोग थे, अलग अलग फील्ड के, फीमेल सेफ्टी के लिए, महाकार्ड के लिए, एमएमआई के लिए, उन क्षेत्र के विद्वान लोगों को यहाँ बुला के उनसे इंटरेक्शन किया। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट था इस 6th फाउंडेशन डे का, जो बहुत बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे किया है, मनाया है और सक्सेसफुल भी हुआ है, जो मुझे लग रहा है। ये पूरे सक्सेसफुल आयोजन के लिए जिन्होंने हमें यहाँ पे सहयोग किया, उन सबका मैं आभारी हूँ। सबसे पहले मैं मैनेजिंग डायरेक्टर का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें ये कंसेप्ट देके आप सबसे रूबरू करने का चांस दिया। हमारे डायरेक्टर्स जो हमारे हरदम दिशा दर्शक रहे हैं, ये प्रोजेक्ट यहाँ तक ले आए हैं, मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि हम इस लेवल पे अभी पहुंचे हैं कि हम आपसे इंटरेक्शन करके प्रोजेक्ट आगे कैसे चलाए, वो हम अभी आगे स्टेप्स ले रहे हैं। मैं हमारे 5 सत्कार मूर्ति, जिन्होंने हमारे राइडरशिप कैंपेन चलाने में काफी सहयोग किया और काफी कंट्रीब्यूशन किया, उन 5 लोगों का हम
मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। हमारे सारे पैनलिस्ट जो यहाँ पे 3 हमारे संगोष्ठी हुई, यहाँ पे परिसंवाद हुआ, तो हमारे जो पूरे पैनलिस्ट है जो अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं, उन्होंने अपने विचार यहाँ प्रकट किए, हमें कुछ सजेशन दिए, हमसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिए जो पब्लिक में जाके डिसमिनेट होनी है। तो उन सबका मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। जो सीनियर सिटीजन्स यहाँ आए, स्कूल चिल्ड्रंस जो यहाँ पे आए, जो हमारे क्लाइंट है और जिन्होंने हमें फीडबैक दिया और ये पूरे इंटरेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन सबका मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। हमारे जो मीडिया कर्मी, मीडिया साथी है, जिन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए हमेशा मदद की है और आगे भी इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल चलाने के लिए हमें मदद करते रहेंगे, उनका प्रेजेंस के लिए मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। हमारे मेट्रो ऑफिशियल्स, जो हमारी टीम है, जो हमेशा इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने में तत्पर रहती है, उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। हमारे जो मॉडरेटर्स है तीनों, जिन्होंने ये तीनों इंटरेक्शन सेशन जो है अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करके इम्प्लीमेंट किया, मैं तीनों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। हमारी PR टीम, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एंकर, हमारे ये एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम, ग्रेट वॉल एम्प्लॉइज, जिन ने हमारे यहाँ ये पूरा कार्यक्रम सफल करने में सहयोग दिया, उन सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और आज के कार्यक्रम यही समाप्त करने की घोषणा करता हूँ।